contribute to society, be it in the family scenario or in the social scenario, we have to contribute. That should be there as part of their psychology, right? नमस्कार, वेलकम टू आरसीआईज नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट्स। टू माय लेफ्ट इज एक्सपर्ट मिस्टर विजय गुलाटी. He is orthotist and prosthetist and working in Nimble prosthetic and orthotic appliances. And to my extreme left is another expert, Mr. N.U. Manohar. He is consultant and Department of Physical Medicine and Rehabilitation at Safdarjung Hospital. Both experts will be giving informations and delivering messages regarding the today's topic of discussion. मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं या अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। तो आइए हम अपनी डिस्कशन अपने एक्सपर्ट के साथ शुरू करते हैं। वेलकम सर। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इट्स रिगार्डिंग लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ऑर्थोसिस का मतलब क्या होता है? ऑर्थोसिस actually this is orthosis is one of the subject. It is and supportive, preventive and corrective appliance for the weaker part of the body. Actually that is main actually. So weaker part of the body's causes may be like polio, cerebral palsy, paraplegia, hemiplegia, quadriplegia, fracture cases, all congenital deformities like by birth, deformities by birth, and spina bifida cases are also there. So these are the different cases for which the orthosis is because the patient is unable to stand, unable to walk. To make the patient stand, to make the patient ambulatory, and orthosis is required, and this also prevents the further growth of the deformity and to transfer the weight from the extremity to the floor. So these are the supportive appliances like that. So this is actually known as orthosis. तो सर आपके इस बारे में क्या व्यूज हैं? Orthosis, जैसा as Mr. Manohar has mentioned, this is a support, an external support to our body, any part of the body, whichever is not strong enough or is weak to bear body weight or to perform the activities. Like if it is upper extremity, then it's activities. But today we will be talking about the lower extremity. So the weight bearing, that is if the limb is not able to bear the weight of the body during the ambulation or the walking procedure, so in that case we need some support. That support is called orthosis. तो जैसे कि आपने बताया ऑर्थोसिस एक अप्लायंस है जो सपोर्टिव एंड करेक्टिव मेजर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे इन अदर वर्ड्स इन हिंदी दिस इज आल्सो नोन एज सहारात्मक उपकरण. सहारात्मक उपकरण. So in orthosis again this is divided into three groups for lower extremity. In lower extremity one is AFO, that is ankle foot orthosis, that is below the knee level, and one is KFO, that is included at knee, that is knee ankle foot orthosis, and the third one is HKAFO, that is hip knee ankle foot orthosis. These are the three different levels of different groups of the lower extremity orthotics. So these are the things that means orthosis. If we call it simply कि orthosis क्या होता है, एक बाहरी सपोर्ट है जो हमारी लेग्स के साथ में काम करते हैं, लेग्स को लगाने के लिए, जिससे कि पेशेंट एम्बुलेशन चल सके, क्योंकि मेन हर इंसान की, हर आदमी की एक रिक्वायरमेंट होती है द वॉकिंग.
So if walking is not possible because of the weakness or because of any other disease or deformity of the lower limb, then we need an orthosis. तब हमें orthosis की ज़रूरत पड़ती है and we need to give it. Sometimes before giving an orthosis, because if there is any contracture, we have to refer the patient for the surgical correction of the leg. Then only orthosis can be fitted. So orthosis जी. is required for the ambulation or the walking of the person. that So is the as you have told, it depends on the level, the kind of injury the patient is having. जैसे कि आपने बताया कि नी हिप नी एंकल ऑर्थोसिस भी होते हैं, या अगर सिर्फ नी और एंकल में प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्थोसिस होते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द level. रिक्वायरमेंट. It's a level of the जी. Means actually this is for the weaker part of the body. The whole body is not weak because the affected part is fitted with an orthosis. जी. Means any orthosis what we are going to provide to the patient, we'll assess the patient, we'll see the muscle power, we'll see the deformity, and where the patient actually need this orthosis, that is to be assessed first. So after assessing it, according to the assessment, we'll decide the type of orthosis to be given to the patient and what is the patient's requirement and what purpose actually we are giving the orthosis. This assessment is essential. जी. And actually there is a team actually in this, in rehabilitation. If you go in a rehabilitation centers, there are team members are there. All team members will assess the case. First physiatrist, then physiotherapist is also there, occupational therapist is there, prosthetist, orthotist is there, even vocational counselor is there, medical social worker is there, psychologist is there. So all the team members, they So will it's a say, teamwork. so it's all a complete aspect of the teamwork. patient is to be So examined. all of them they will assess on their part actually, and this is discussed in a clinic where the final actually result will come, means what the patient really need. जी. So that is decided there. So accordingly that is prescribed in the clinic, and then the orthosis is given to the patient. जी. तो सर जैसे कि आपने हमें बताया कि ऑर्थोसिस का मतलब क्या होता है, उसके लेवल्स कैसे होते हैं, और एक टीम वर्क हमारे साथ काम करती है जो कि डिफरेंट लेवल्स के होते हैं. और टीम वर्क में जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि डिफरेंट प्रोफेशंस के होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, प्रोस्थेटिक्स होते हैं. तो इस तरह के हमारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ काम करते हैं. तो सर इन टुडेज डिस्कशन व्हाट मोर एस्पेक्ट्स यू विल बी डिस्कसिंग? आज के लोअर लिम्ब के ऊपर बात करते हुए वी जी. विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्थोसिस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पर्पज, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर से, और हाउ डू दे वर्क एंड व्हाई डू दे वी गिव accordingly. You can see, we'll show some of the slides also in which you can see the difference with the orthosis or without the orthosis the patient is there, so that उसके साथ में it makes very clear that orthosis is necessary wherever it is required. जी. So बिना उसके एक जो person who has been who is not able to walk with that, so requires an orthosis, we need to give an orthosis. जी. So that's what we will do that. So जैसा कि आपने कहा कि ऑर्थोसिस क्या होता है, then फर्स्ट स्लाइड शोज दैट ऑर्थोसिस क्या होता है. So that is lower extremity. You can see that an orthosis is an external support to any weak part of the body. That is the definition. Or you can see one of the child who has been affected with the polio, and he is wearing an orthosis which is conventional type orthosis, जो आज के टाइम में काफ़ी कम है इसको इस्तेमाल में, क्योंकि ये थोड़ी कम्बरसम है, कॉम्प्लिकेटेड है, और थोड़ा सा इसके साथ में अभी एडवांसमेंट हर फील्ड में आ गई है. सो इस फील्ड में भी काफ़ी एडवांसमेंट है. विल शो यू द एडवांस वर्जन्स ऑल्सो. तो ये एक ऑर्थोसिस क्या होती है, एक बड़े सिंपल शब्द में कहा जाए तो एक सपोर्ट है जो बॉडी के कमज़ोर पार्ट को सपोर्ट करती है ताकि वो अपना काम सक्षमता से कर सकें करके, अगर क्षमता नहीं होती तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो ये हमारी एक ऑर्थोसिस है लोअर एक्सट्रीम. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं सिर्फ लोअर लिम्ब के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कमर से नीचे या कमर तक या कमर से नीचे तक के पार्ट को सपोर्ट देते हैं, उसके बारे में. ठीक है. अदरवाइज़ तो क्या है कि हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी सेपरेट लेते हैं, स्पाइनल ऑर्थोटिक्स दैट इज़ द सेपरेट पार्ट हो जाता है. सो आज के टाइम में जो आज हमारे पास वक्त है उसमें हम ये बात करेंगे. अगर कोई व्यूअर को इसके बारे में कुछ जानकारी और भी चाहिए होगी इसके अलावा जो हम दे रहे हैं, तो भी हम देने के लिए तैयार हैं. यहाँ पे वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन. सो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आते हैं
तो वी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस आल्सो. सो लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर ये बात हुई. देन इंडिकेशंस क्या है, क्यों वी नीड दैट लोअर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती है. आपने पोलियो के बारे में तो हर कोई जनता जानती है, हर कोई अवेयरनेस है कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में 5 साल के 7 साल की उम्र तक के बच्चों को अटैक करती है. एक वायरस है जो अटैक करता है, जिसकी वजह से जो लोअर लिम्ब की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, और उसकी पैरालाइज होने के बाद में वो रिकवरी उनकी बहुत कम हो जाती है. रिकवर ना होने की वजह से एक पूरी जितना इफेक्टेड पार्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द लेजन, कहाँ पे वायरस ने बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ भी अटैक किया है, किस पार्ट में अटैक किया है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स आता है नीचे, उसमें उसका असर दिखाई देता है, और वो हिस्सा जो टांगों का होता है वो पैरालाइज हो जाता है. चाहे वो एंकल तक का है या नी तक है या हिप तक का है, ये सब डिपेंड करता है उसके वायरस कहाँ पे उसने अटैक किया करके. और उसके बाद कितनी रिकवरी हुई है, जो इनिशियल पीरियड होता है थोड़ा रिकवरी होती है, उसके बाद जो है एक जो पैरालिसिस होता है वो परमानेंट रह जाता है, दैट इज़ नॉन क्योरेबल हो जाता है. इसीलिए पोलियो के लिए आप आज के टाइम में देख रहे हैं, इसको ना हो करके पोलियो डोजेस बच्चों को हर महीने समझिए दिए जाती हैं. गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सब इसके पीछे लगी हुई हैं ताकि पोलियो को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए. तो इसकी वजह से पोलियो ना हो, क्योंकि ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो आखिरी दम तक आदमी का पीछा नहीं छोड़ती है, साथ रहती है उसके. तो इसलिए क्या है कि पोलियो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये पैरालिसिस हो जाता है, पैर सक्षम नहीं रहता है, काम बोन्स होती हैं सब बराबर हैं, लेकिन मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, मसल्स काम नहीं करती. हमारे हर जोड़ के ऊपर मसल्स काम करती हैं, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं. ये सारी मसल्स हमारे जोड़ों पे काम करती हैं. अगर वो मसल्स काम नहीं करना बंद कर देती हैं बिकॉज ऑफ दिस पैरालिसिस, पोलियो के अटैक से, तो उसकी वजह से फिर वो काम नहीं करती. हमें चलने के लिए सपोर्ट की जरूरत, बैठने के लिए तो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बैठ सकते हैं, बट जब खड़ा होना है या चलना है तो हमें ज़रूर ऑर्थोसिस लगानी पड़ती है. सर, जैसे कि आपने ये बताया कि पोलियो मतलब 5 साल या 7 साल तक बच्चों को अफेक्ट करता है, और ये बेसिकली मतलब जन्म से ही शुरू हो जाता है जब वायरस इसका अटैक करता है. तो अगर एक बच्चे को पोलियो हो जाता है, पोलियो का वायरस अटैक हो जाता है, तो क्या उसका कुछ क्योर नहीं है? अटैक होने के बाद एक्चुअली इसका 2 मंथ्स का जो है इसका रिकवरी पीरियड होता है जी. 2 मंथ्स के अंदर पेशेंट जो स्ट्रेंथ गेन कर लिया, तो उस 2 मंथ्स के पीरियड्स में एक्चुअली पेशेंट का सपोर्टिव अप्लायंस देते हैं ताकि पेशेंट को एक कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना करे, कोई डिफॉर्मिटी डेवलप ना करे. एक प्रॉपर पोजीशन में उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को मेंटेन करने के लिए एक्चुअली सपोर्टिव अप्लायंसेस करके पहले ऑन बेड देते हैं. And during that period, even physiotherapist, occupational therapist, they will also provide exercise therapy ताकि मसल्स जो वीक हो गए वो इम्प्रूव कर सके, वो भी देखते हैं साथ में. जितने मसल्स इम्प्रूव कर लिया, जितना स्ट्रेंथ अपने उस एक्यूट स्टेज में पेशेंट ने गेन कर लिया जी. वो छोड़ के उसके बाद जो रह जाता है दैट इज़ ऑलमोस्ट ए परमानेंट डिसेबिलिटी फॉर द पेशेंट. उसके बाद स्ट्रेंथ आने का चांसेस बहुत कम होते हैं. और उसके बाद स्ट्रेंथ नहीं आने के बाद अगर पेशेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं तब भी पेशेंट जो है डिफॉर्मिटीज़ डेवलप करते हैं. कुछ डिफॉर्मिटीज़ जब स्टार्टिंग पीरियड में डिफॉर्मिटीज़ स्ट्रेचेबल होते हैं, तो अगर नेग्लेक्ट ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक अगर कर दिया तो डिफॉर्मिटीज़ फिक्स डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होके. उसके बाद फिर आप एक ऑर्थोसिस भी पेशेंट को फिट नहीं कर सकते हैं, कंडीशन से भी होता है. ऑर्थोसिस फिट करना है तो कम से कम डिफॉर्मिटी जो है स्ट्रेचेबल टू नॉर्मल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन तक स्ट्रेचेबल होना चाहिए. अगर स्ट्रेचेबल नहीं है तो आप ऑर्थोसिस भी फिट नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा कोई फिक्स डिफॉर्मिटीज है तो पेशेंट हैज़ टू गो फॉर सर्जिकल करेक्शन. तो इसका मतलब अगर मतलब प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ना ले तो वो डिटेरिएट हो जाती है, डिटेरिएट हो जाते हैं, तो क्रिपल्ड हो जाता है पेशेंट, फिर क्रॉलिंग पोजीशन आ जाता है. तो अगर स्टार्टिंग से अगर आप सपोर्टिव अप्लायंसेस दे के उसको प्रॉपर मेंटेन करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. सर, इसमें पोलियो में एक और टर्म यूज की जाती है, पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस, PPRP.
तो उसका क्या लिंक है और क्या कंडीशन होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? ये मतलब वही है, इट्स इंग्लिश में जैसे आप लिख रहे हैं पोस्ट पोलियो मीन्स पोलियो के बाद, रेजिडुअल मीन्स परमानेंट पैरालिसिस। पोलियो के बाद में जो एक रेजिडुअल, एक परमानेंट जो पैरालिसिस रह जाता है, जो दैट इज द PPRP, पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस। सो दैट इज द पैरालिसिस जो रह जाता है। जैसा मनोहर साहब ने बताया कि 2 महीने का रिकवरी टाइम होता है। रिकवरी टाइम में जितना रिकवर हो जाता है, बाकी जो नहीं हो पाता वो दैट्स द रेजिडुअल पैरालिसिस। और इट्स ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 100% रिकवरी हो जाए। जी जी। रिकवरी रेट इज़ वेरी लेस और डैमेज रेट इज़ वेरी हाई। सो अगर रिकवरी होती है तो 10% 15% रिकवरी होती है, बाकी की जो डैमेज होती है वो नहीं रिकवर हो पाती है। तो इसका रिकवरी रेट बहुत कम है, बहुत कम होता है। इसलिए इसमें पोलियो ना हो करके यही सबसे बेहतर इलाज है कि प्रिवेंशन ही किया जाए, पोलियो से दूर रहा जाए, पोलियो को अपने पास ना आने दिया जाए, ताकि उसके बाद में जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा और बहुत दुखदायी है। जैसा कि मनोहर साहब ने और भी बताया कि अगर इसको ठीक टाइम से पोस्ट पोलियो PPRP को ठीक से नहीं ट्रीट किया जाए, नहीं केयर की जाए, तो भी उसके बाद क्या होता है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, क्रिपलनेस आ जाती है। ये चीज़ें गांव में पहले हुआ करती थी, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, और पोलियो भी बहुत हाई लेवल पे था। बिकॉज अनहाइजीनिक कंडीशन तो एक वायरस के पलने की जगह है, जहाँ कंडीशंस हाइजीनिक नहीं होंगी वहाँ पे पोलियो का वायरस वहाँ पनपता है, और उस एरिया में ही ये ज़्यादा केसेस मिलते हैं करके, जो पोलियो के केसेस होते हैं। और गांव में ही फैसिलिटीज़ भी कम है, दोनों चीज़ें एक साथ में हो जाती हैं। एक तो वहाँ पे वायरस बहुत ज़्यादा है और दूसरा वहाँ फैसिलिटीज़ कम है। उसकी वजह से क्या होता है, इवन पोलियो का इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम इतना अच्छा गांव में नहीं चल सकता था कि इसकी जो मेडिसिन है जो पोलियो की, उसको -6 डिग्री पर रखना पड़ता है टेम्परेचर उसका, बहुत फ्रीजिंग पॉइंट पर रखते हैं उसको। और गांव में आप समझते हैं बिजली की कमी है, स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं है। अभी तो अच्छा है, उन्होंने कंडेंस्ड एयर के जो कंटेनर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी कम टेम्परेचर के ऊपर मेडिसिन को मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो पहले मेंटेन भी नहीं कर पाते थे। तो मीन्स मेडिसिन जो देते भी थे वहाँ पे वो भी यूजलेस होती थी, ख़त्म हो चुकी थी, एक्सपायर्ड हो चुकी थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि हमें विलेजेस में हमने जब काम किया, वहाँ पे हम गए, उन्होंने हमें बताया कि हमने तो पोलियो की दवा भी पिलाई थी, सब कुछ दिया, फिर भी हमारे बच्चे को पोलियो हो गया। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर ओनली बिकॉज ऑफ दैट पोलियो वैक्सीन विच हैज़ बीन गिवन टू द चाइल्ड दैट वाज एक्सपायर्ड। So for that reason only, because parents are also right that they have given the medicine before the child was affected, but even then the polio has been occurred to that child. जी, जैसे कि सर आपने बताया था कि 2 months का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम मैक्सिमम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन एक अगर पोलियो वायरस ने अटैक कर दिया है तो इनिशियली कैसे हम रिकॉग्निशन उसको मतलब कर सकते हैं, कैसे एक पेरेंट्स को पता चल सकता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या अर्ली आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली फीवर होता है पहले जी, तो उस फीवर जब होता है तो उसी टाइम एक्चुअली प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट एक्चुअली होना चाहिए। लेकिन तो अगर हम बात करते हैं, आपने जैसे फीवर का बताया, तो फीवर इज अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ मेनी कंडीशंस। नॉर्मली कॉमन फीवर में ही होता है, वैसे पोलियो के लिए सेपरेट ऐसे फीवर ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। नॉर्मल फीवर नॉर्मल टेम्परेचर ही होते हैं। उसमें बहुत सी जगह कुछ पेशेंट्स का कंप्लेंट्स है उसमें कि फीवर आ गया, डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन दिए गए, उसके बाद फिर पैर काम करना ड्यूरेशन बंद हो में गया। स्टार्ट होता है फीवर? जैसे अगर मान लीजिए वायरस ने अटैक कर दिया तो फीवर विल बी आफ्टर 1 वीक और कुछ ड्यूरेशन? अटैक करने के इमीडिएटली फीवर स्टार्ट हो जाता है वैसे जी। तो उस फीवर में भी स्टार्टिंग में बहुत लोग आम नॉर्मल फीवर करके नेगलेक्ट कर लेते हैं, उसमें ये भी है। तो इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई इसमें सिम्टम्स आपको सेपरेट सिम्टम्स नजर नहीं आएगा। पोलियो के लिए सेपरेट मतलब वी कैन से दैट इट्स अ हाई रिस्क कंडीशन की इसमें हाई फीवर होता है, उसमें हाई फीवर होता है। फीवर के बाद में ही बच्चा जो है पैर जमीन पे रखना नहीं रखता है। तो ये फीवर कितनी ड्यूरेशन तक रहता है? मतलब हमेशा रहता है? 1 वीक जैसे कॉमन है 1 वीक। उसके बाद फीवर फिर उसके बाद फीवर खत्म हो जाता है। फीवर खत्म हो जाता है, बट इट हैज ऑलरेडी अफेक्टेड, तो मसल्स का फंक्शन फिर इफेक्ट हो जाता है। बच्चा पैर नहीं लगाता जमीन के ऊपर, खड़ा नहीं होता है उसको। तो जब पेरेंट्स को जब पता लगता है कि पैर हिल नहीं रहा, तब उनको पता लगता है। तो ये तो मतलब काफी एक गैप हो जाएगा टाइम पीरियड। तो उसमें अगर
2 months का टाइम कहें तो इट्स वेरी लेस ऑफ. ना 2 months आफ्टर अटैक, 2 months का जो पीरियड होता है रिकवरी स्टेज होता है उसमें, That is the recovery. उसमें रिकवरी स्टेज होता है. अटैक का इसका कोई संबंध नहीं. अच्छा, आफ्टर जी. अटैक 2 months का रिकवरी स्टेज होता है. इवन इंजरी केसेस भी होते हैं, नॉर्मल इंजरी केसेस भी, तो उसमें भी 2 months का टाइम नॉर्मली होता है. जैसे अभी जी. आप फ्रैक्चर केस में देख लीजिए, 4 to 6 weeks प्लास्टर में रहता है, तो उसमें हील अप होता है उस टाइम. तो इसी बट तरह जैसे का आपने इनिशियल जो फैक्टर बताया कि बच्चे को फीवर fever होता का है, होता है. तो हम अगर कहें कि फीवर तो एक कॉमन फीचर है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं. अगर बच्चे को इन्फेक्शन भी हो जाता है तो भी फीवर हो जाता है, या नॉर्मल कोल्ड होता है तो उससे भी फीवर हो जाता है. तो ये तो इजीली आइडेंटिफाइंग फीचर नहीं है, मतलब नहीं. एक प्रोमिनेंट फीचर नहीं कह सकते हम हाँ, पोलियो नहीं, का. पोलियो के लिए प्रोमिनेंट अलग फीचर्स ऐसा कोई खास नजर नहीं आएगा आपको. नॉर्मल फीवर जैसे आपको अटैक्स में से नजर आएगा. हाई Only फीवर up भी to हो the age जाता of child 7 years. 7 साल के जी, छोटे जी. बच्चे को अगर बुखार होता है तो तब सोचने की बात होती है कि कहीं ऐसा कुछ और वायरस तो नहीं है उसके ऊपर. So what are the more conditions that give indications? So there are some other indications like cerebral palsy. अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी cerebral palsy is entirely opposite to the polio. इसमें क्या है कि brain paralysis, cerebral means brain और palsy is a paralysis. So brain paralysis means the part of जो brain है which controls the movements of the body, जी. that is being affected, that is being paralyzed. Means the child or the person doesn't get the command from the brain itself, ताकि उनको मूवमेंट्स कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी की मूवमेंट्स कहाँ से होती हैं, जब हमारा ब्रेन हमें कमांड करता है जी. तभी मूवमेंट्स होती हैं. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन पैरालिसिस दैट इज़ अ नेटल, पैदा होते ही होता है बचपन का, या प्री नेटल और नेटल कंडीशंस में हो जाता है. इट्स ओनली कंडीशन ऑफ द चाइल्ड. कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन. बच्चे की कंडीशन है कि उसका ब्रेन जो है थोड़ा, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, जब पैदा होता है बच्चा तो रोता है करके हम रुलाते हैं, नहीं रोता, तो दैट इज़ ओनली दैट ऑक्सीजन टू इनहेल. द ब्रेन को इमीडिएट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जब बच्चा पैदा जी. होता है. तो बच्चा जब लंबे लंबे सांस खींचता है रोते वक्त, तो ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में, खूब मात्रा में ले जाता है बच्चा अंदर, तो जिसकी वजह से ब्रेन सर्वाइव कर जाता है, फंक्शनिंग में आ जाता है. और अगर बच्चा नहीं रोता है तो ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से डैमेज हो जाती है. जी. तो ये एक कंडीशन होती है. इस कंडीशन के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जो हमारी नर्व्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो होते हैं, बच्चों में मूवमेंट्स की कमी होती है, पैरों को या हाथों को चला नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द कमांड. ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ द मसल पावर. पोलियो के अंदर तो मसल पावर डैमेज हो जाती है, जी. इसमें मसल पावर रहती है वैसी की वैसी, लेकिन कमांड नहीं है. उनको पीछे से ब्रेन से कमांड नहीं आता है उसको मूव करने के लिए. Because brain is Brain काम damaged नहीं and करती. brain has different centers for the commands. द पर्टिकुलर पार्ट जो ब्रेन का जो पार्ट होता है डैमेज होता है, मे बी हियरिंग लॉस हो जाए, मे बी विजुअल लॉस हो सकता है, मे बी फंक्शनिंग ऑफ द हैंड जो है ये लॉस हो जाए, स्पीच लॉस होता है. जी. दैट इज द डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा ड्यूरिंग दैट पैरालिसिस जो है उसको अफेक्ट किया करता है. So with this main condition, other comorbid conditions can be there. यस, कुछ भी, दोनों आपस में कंबाइन भी हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है हेयरिंग भी गया और स्पीच भी गई. जी. ऐसा भी हो सकता है कि स्पीच भी गई और लोअर एक्सट्रीमिटी भी काम नहीं कर रही जी, है, जी. अपर एक्सट्रीमिटी काम नहीं कर रही है. सो ऑल दिस आर, एक भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ये जी. डिपेंड करता है उस वक्त कितना सीवियर अटैक हुआ है बच्चे को. उसके हर बच्चे का अलग अलग कंडीशन होती है, एक जैसी नहीं होती है बच्चे की कंडीशन. तो ये एक अलग से और रीज़न है, इंडिकेशन है, जिसके अंदर जो बच्चों की लोअर लिम्स अफेक्टेड होती हैं उनको न कि वेट बेयरिंग प्रॉब्लम होती है, ओनली द फंक्शनिंग प्रॉब्लम होती है कि नी को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्टेबलाइज नहीं कर पाते. बिकॉज हम अगर खड़े होना चाहते हैं तो हम अपने घुटने को स्टेबलाइज करके 180 डिग्री पे खड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा वेट पूरा पैर के ऊपर सीधे सीधे आ जाए. और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स कि हमारे जो जॉइंट्स हैं ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मसल्स हमारी कमांड नहीं ले रही हैं, मसल्स हमारी काम नहीं कर रही हैं. तो उसको सपोर्ट देने को सपोर्ट करने के लिए, एंकल को सपोर्ट करने के लिए वी नीड एन ऑर्थोसिस. जो हम ऑर्थोसिस, लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर लिम ऑर्थोसिस की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम ये भी एक ऑर्थोसिस होती है जो हम लोअर लिम में यूज़ करते हैं. जो हमारे सेरेब्रल पल्सी के कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर भी इस चीज़ को
इस्तेमाल किया जाता है। जी सर, जैसे कि आपने दो कंडीशंस बताई, एक पोलियो और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने देखा सेरिब्रल पॉल्सी। जी पर जैसे हमने कुछ पेशेंट्स देखे हैं, अगर हम स्पाइनल इंजरी की बात करें तो उनमें भी क्या मसल पावर का लॉस होता है, Spinal मसल injury we'll वीकनेस discuss वो later भी on. हम आ रहे हैं, वो will हम be उसमें next that उसमें is- आ रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी में एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है इसमें, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद उसका जो पता लग जाता है उसमें मीन्स डिलेड माइलस्टोन्स भी कहते हैं इसको। और दूसरा, पैदा होते ही बच्चा रोता नहीं है, सो सिम्टम्स वहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है, एक तो नेक कंट्रोल नहीं रहता, नेक प्रॉपर पोजीशन में होल्ड नहीं कर पाता, फिर सिटिंग बैलेंस नहीं होता। ये 2 पॉइंट्स पहले पेशेंट का मीन्स पेरेंट्स का जो कंप्लेंट जो होता है, नेक कंट्रोल नहीं है, सिटिंग बैलेंस नहीं होता, एंड वैसे बाकी एक्टिविटी जैसे नॉर्मल चाइल्ड करते हैं उस तरह के कोई एक्टिविटीज़ ये पेशेंट जो है परफॉर्म नहीं कर पाते। जो उसमें माइलस्टोन की बात differences कर रहे हैं हैं, मनोज delayed सर, milestone। जो डिलेड माइलस्टोन, क्योंकि हम लोग भी बड़े हुए हैं तो एक माइलस्टोन से पास होके आए हैं। हमारा एक प्रोसीजर रहा है बड़े होने का, हर बच्चे का होता है। तो बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन संभालता है, जी जो 3-4 महीने और के टाइम में आता है। उसके बाद 5 महीने 6 महीने के टाइम पे सिटिंग बैलेंस बन जाता है। फिर 9 महीने तक स्टैंडिंग थोड़ा शुरू हो जाती है और 1 साल 1.25 साल तक का बच्चा वॉकिंग शुरू करता है। जी। तो ये हमारा एक साइकिल है, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में duration बच्चे में, के जो हाँ, अचीव करने हैं वो नहीं कर milestones। पाते हैं। जी जो जैसे बच्चा जो है 3 महीने का हुआ है या 6 महीने का भी हो गया तो अभी नेक कंट्रोल में नहीं है, नेक को ठीक से अपनी गर्दन को संभाल नहीं सकता है, गिर जाती है, कभी इधर गिर जाती है, कभी इधर गिर जाती है, मीन्स दैट इज द नेक कंट्रोल बच्चे को नहीं है, अपना कंट्रोल नहीं है। तो दैट इज द डिलेड हो गया। जो 3 महीने में काम होना था वो 6 महीने में भी नहीं हुआ, अभी 1 साल में नहीं हुआ। डिपेंड करता है हर एक की सीवियरिटी के ऊपर, क्योंकि स्टेप तो यही है हमारे, जो भी चाहे सेरेब्रल पल्सी का बच्चा है या कोई भी है, हमारा ग्रो करने का एक सिस्टम या एक हमारा जो साइकिल है वो तो यही है। पहले नेक कंट्रोल करेगा बच्चा, फिर सिटिंग बैलेंस करेगा, फिर उसके बाद स्टैंडिंग बैलेंस करेगा, देन वॉकिंग करेंगे। जी ये एक साइकिल तो यही रहेगा। हमारे पास सेरेब्रल पल्सी के बच्चे बहुत से आते हैं जिनको हम देखते हैं, जिन बच्चों में अभी सिटिंग बैलेंस भी नहीं है और पेरेंट्स उनको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी उम्र 1.5 साल हो गई है, बच्चा 1.5 साल का हो गया है लेकिन सिटिंग बैलेंस नहीं है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उम्र के हिसाब से 1.5 साल का बच्चा तो चलने लगता है, ये बच्चा अभी खड़ा भी नहीं हो रहा है, तो उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। हमें पेशेंट को उसके अगर डिलेड माइलस्टोन है तो हमें उसके साइकिल के साथ ही चलना पूरा पड़ेगा, सीक्वेंस में ही उसमें ही चलना पड़ेगा। हम स्टेप अप नहीं कर सकते। अगर जी। सिटिंग बैलेंस नहीं आया तो हम खड़ा करना कोशिश करेंगे, गलत हो जाएगा। अगर नेक कंट्रोल नहीं है तो हम बैठाने की कोशिश करेंगे तो भी गलत हो गया। जब तक नेक कंट्रोल नहीं आएगा उसके बाद ही हम सिटिंग में जाएंगे, सिटिंग आ जाएगी फिर स्टैंडिंग में जाएंगे, स्टैंडिंग आ जाएगी फिर वॉकिंग में जाएंगे। तो ये सारे स्टेप तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलने पड़ेंगे बच्चे के साथ में। अगर वो स्लो है तो हमें भी उसके साथ स्लो चलना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो हम ऑर्थोटिक मैनेजमेंट या थेरेपी मैनेजमेंट उसके अंदर देते हैं बच्चों को, ताकि अगर वो स्लो प्रोसेस में जा रहा है उस पीरियड के उस दौरान उसमें कोई कॉन्ट्रैक्चर्स या कोई डिफॉर्मिटी बॉडी के अंदर नहीं डेवलप हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को भी, और जो भी प्रोफेशनल रिहैब प्रोफेशनल जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको ये देखना है कि इसके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ डेवलप ना हो जाए जो आगे जाके हमें परेशान करने। जी तो बच्चे की ऐसी कंडीशन ना बन जाए कि आगे जाके जब खड़े होने का टाइम आए तो उसके पैर टेढ़े हो गए, जब खड़े होने का वक्त आए तो उसके घुटने सीधे नहीं हो रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान पहले से ही रखना पड़ेगा हमें। जब तक उसकी खड़े होने की स्टेज आए उसका पैर सीधा होना चाहिए, घुटना सीधा होना चाहिए, चाहे वो लेट आए, 2 साल में आए, 1.5 साल में आए, 3 साल में आए, डिपेंड करता है हर बच्चे का। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की एक जैसी होती है, अलग अलग बच्चों की कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से चलेगा। और हमें ऑर्थोसिस इसीलिए देनी पड़ती है कई दफ़ा, जैसा हम ऑर्थोसिस के अंदर कहते हैं कि ये प्रिवेंटिव हैं, सपोर्टिव हैं। प्रिवेंशन यही करती हैं कि ताकि कोई डिफॉर्मिटी ना बन पाए, तो इसलिए ये प्रिवेंटिव ऑर्थोसिस जो हमें देनी पड़ती हैं बच्चों को, वो ऑर्थोसिस हमें देनी पड़ेंगी। जहाँ तक ये बड़े बच्चों की बात आ रही है, जहाँ लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस की बात आ रही है, जो सेरेब्रल पल्सी के बड़े बच्चे हो जाते हैं जिनका सिटिंग बैलेंस अच्छा है लेकिन स्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, देन वी हैव टू गिव देम एन ऑर्थोसिस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से घुटनों को, नी को स्टेबलाइज कर लेते हैं, एक कंडीशन में पूरी उसको ठीक से रख लेते हैं, ताकि वेट बेयरिंग के टाइम पे बच्चे का पैर मुड़े नहीं, बक्कल नहीं करे, एकदम गिर नहीं जाए बच्चा, उसको पैरों में कैलिपर लगा के उसको सपोर्ट दे देते हैं। वेरस सेरेब्रल पल्सी के अंदर हम हर केस के अंदर मिनिमम ऑर्थोसिस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देते हैं, बहुत कम ऑर्थोसिस देने की कोशिश करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर बर्डन ऑर्थोसिस का नहीं डाला जाए करके। जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बच्चे को ऑर्थोसिस देते हैं। और जहाँ कंडीशन की बात आती है और जहाँ सेरेब्रल पल्सी के बच्चे हैं उनके लिए हम
एक सिंपल वे निकालते हैं जिसके अंदर आसानी से बच्चे को पहनना उतारना, क्योंकि पेरेंट्स को ये सब काम करना पड़ता है, बच्चे खुद कई दफ़ा नहीं कर पाते। और वेरस पोलियो के अंदर तो जो पोलियो के कैलिपर यूज़र्स हैं वो अपने आप ही ऑर्थोसिस पहन लेते हैं, उतार लेते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। So these are the few indications that refers to the conditions that needs lower limb orthosis, और जिसमें हमने देखा कि पोलियो होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी होती है, और उसमें हमने देखा कि कुछ स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स भी होते हैं जिनको लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा
हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कुछ इंडिकेशंस। वी विल बी डिस्कसिंग मोर इंडिकेशंस दैट विल टेल हाउ मेनी पेशेंट्स रिक्वायर लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस। तो आइए हम जानते हैं और कंडीशंस के बारे में। हमारे और जो कंडीशंस हैं, जैसे पर्थेस डिसीज़, एक जो स्लाइड आप देख सकते हैं, जो पर्थेस डिसीज़ होती है, जो एक इट्स ए डिसीज़ ऑफ एन हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के अंदर जो बोन, हमारी जो फीमर बोन है, उस बोन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो किसी ना किसी वजह से, किसी भी वजह से रुक जाती है। मतलब फ्लो ठीक से जो है बोन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं जाता है। जो उसके हेड ऑफ द जो बोन है, जो बोन का हमारा फिबुला का ऊपर का हिस्सा है, उस जो बॉल होता है, जो सॉकेट के अंदर हमारी शरीर के अंदर जो फिट होता है, उसके अंदर वो ब्लड सर्कुलेशन ना जाने की वजह से जो ऊपर का हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और क्रैक कर जाता है, टूट जाता है, कई दफ़ा ग्रो नहीं कर पाता, भुर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट जो है, हिप जॉइंट जो है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, वेट नहीं ले सकते उसके अंदर, बिकॉज डिफॉर्मिटी जॉइंट, किसी भी जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाए तो खड़ा नहीं हो सकता। तो हिप जॉइंट तो एक मेन हमारा बॉडी का जॉइंट है, जिसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं हमारी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन, इससे बहुत सारी मूवमेंट्स हमारी जो वॉकिंग के अंदर यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी हमारी हिप जॉइंट्स होती हैं। और जिस बच्चे का ये हिप जॉइंट कमज़ोर हो जाता है, बट ये क्योरेबल है, ऐसा नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अगर ठीक टाइम से पता लग जाए तो इसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बट जितनी देर इसका ट्रीटमेंट, इट्स वेरी स्लो, इसका प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे चलता है इसका ट्रीटमेंट और टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि बच्चे को मोबिलिटेशन चाहिए तो कैलिपर दिया जाता है, एक ऑर्थोसिस दिया जाता है, जो कि उसका एक तो पोजीशनिंग ठीक से रखते हैं उस कैलिपर के साथ, उस ऑर्थोसिस के साथ में, प्लस उसको एक वेट बेरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि मोबिलेशन, एक बच्चे की मोबिलिटी बनी रहे, ताकि चलता भी रहे। क्योंकि अगर इसको 4 महीने लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, साल लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, तो 2 साल बच्चा बेड पे नहीं रहे, मूवमेंट करता रहे, चलता रहे, बाकी काम करता रहे, नॉर्मल रहती है बाकी बॉडी। तो इसलिए इसको एक मोबिलेशन देने के लिए मोबिलिटी कम की जाती है, रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं, भागा दौड़ी कम कर दी जाती है, वेट बेरिंग कम होता है इसके अंदर। तो ये एक डिसीज़ ऐसी है जिसको रिकवर तो हो जाती है, बच्चों में अगर जल्दी पता लग गया तो रिकवर भी हो जाती है, और नहीं होती है तो सर्जिकली, आजकल तो हिप जॉइंट जो है रिप्लेस भी हो जाता है, नया हिप जॉइंट डाल देते हैं, तो दैट इज़ द लास्ट की सर्जिकल भी उसको करेक्शन कर देते हैं। सो एक ये इंडिकेशन पर्थेस डिसीज़ करके है, लेग कैवे पर्थेस डिसीज़ है। तो इसको इसके अंदर बच्चों के अंदर ही ज़्यादा मिलती है, ये जो 2 साल 3 साल से लेके 7-8 साल तक पता लग जाता है, तो उसमें फिर वक्त लगता है थोड़ा सा उसको क्योर करने में, एंड इट हैज़ टू बी गॉन टू ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। पर्थेस डिसीज एक्चुअली नॉर्मली इट इज़ ऑल्सो बाय बर्थ, जन्म से ही जॉइंट फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से, उसमें अगर वेट बेयर करने से इसमें नुकसान होने का चांसेस रहता है, फिर फॉर्मेशन प्रॉपर जॉइंट नहीं होता, फिर उसके लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट करते हैं। तो वेट बेयरिंग ना करने के लिए जो आर्थोसिस देते हैं, दैट इज़ टू रिलीव द वेट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी, दैट इज़ द पर्पस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी आर्थोसिस इन पर्थेस डिसीज एक्चुअली। क्योंकि आर्थोसिस जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी में, these are 2 types. One is weight bearing orthosis, one is non weight bearing orthosis. Weight bearing means actually the weight of the body is borne by the orthosis and relieved from the extremity. नॉन वेट बेयरिंग में जो है, नॉन वेट बेयरिंग में इसमें तो है एक्सट्रीमिटी भी 50% बेयर करता है, ऑर्थोसिस भी 50% बेयर करता है। सो ये 2 डिफरेंसेस है इसमें। सो पर्थेस डिसीज में खास कर जो ऑर्थोसिस देते हैं, इसमें एक्सट्रीमिटी में बिल्कुल वेट नहीं आना है।
तो वेट जो नॉर्मली बॉन्ड करते हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटी का जो बोन्स है, जैसे फीमर है, फिबुला, टिबिया है, फिर नीचे फुट का बोन्स है, ये इसमें एक्चुअली नॉर्मल वेट बेरिंग उस तरह होता है। नॉर्मल वेट बेरिंग जो जब पैर जब नीचे रखते हैं, हील में जो है 40% वेट इज़ बॉन्ड बाय द हील, 20% वेट इज़ बॉन्ड बाय द फर्स्ट टो, ग्रेट टो, एंड 10 ईच फॉर द रिमेनिंग टोज। इस तरह का एक्चुअली जो है वेट बेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें टोटल वेट रिलीव करते हैं फ्रॉम एक्सट्रीमिटी से, एंड द टोटल वेट इज बॉन्ड बाय द ऑर्थोसिस, द लोअर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस जो डिज़ाइन आपने करके रखे हैं। सो द वेट इज बॉन्ड थ्रू इशियल ट्यूब्रोसिटी, जो हम लोग बैठते हैं जो बोन है दैट इज नोन एज इशियल ट्यूब्रोसिटी, वहाँ से वेट बेयर करके फिर फ्लोर को उसको ट्रांसफ़र करते हैं। प्लस इसमें पोजीशन ये भी होता है, लेग को हम लोग एबडक्ट करके रखते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी। एबडक्ट करके रखने से उसमें क्या होता है, इसका फीमर का जो हेड ऑफ द, इसका जो हेड है, उसका नेक एंड हेड ऑफ द फीमर जो है, दैट हेड ऑफ द फीमर रिमेन्स इन एसिटेबुलम। एसिटेबुलम जो सॉकेट जो होता है उसके अंदर रिमेन। अगर एडक्ट करेंगे इट कम्स आउट, इट कम्स आउट में फिर फॉर्मेशन में दिक्कत होता है। तो इसको एबडक्ट करके रखते हैं ताकि दैट विल रिमेन इन द सॉकेट इटसेल्फ। सो उस पर्पज़ के लिए एक्चुअली नॉर्मली द ऑर्थोसिस इसमें, तो ऑर्थोसिस जो अलाइन भी करते हैं हम लोग, इसको नॉर्मल वेट बेरिंग लाइन में अलाइन ना करके इसको एबडक्शन में अलाइन करते हैं। तो वेट बेरिंग एबडक्शन में होता है। तो इस तरह एक्चुअली इसका जो है, इसका ऑर्थोसिस में थोड़ा सा ये प्रिकॉशंस हमें लेना होता है। जी सर, व्हाट आर द मोर इंडिकेशंस टू द कंडीशंस? समटाइम्स देयर आर बाय बर्थ कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसीज होती हैं जो जन्म से ही होती हैं बच्चों के पैरों में। आप देख सकते हैं एक बच्चे के तो पैर काफ़ी थोड़े बहुत अलग तरह की डेफिशिएंसीज आती हैं बच्चों की, और देन उसके अंदर वी नीड टू सपोर्ट देम, बिकॉज जैसे बोन में लेग के अंदर जो हमारी शिन पार्ट है उसके अंदर एक टिबिया और एक फिबुला, दो लंबी बोन्स हैं जो वेट बेरिंग करती हैं। और कई दफ़ा बच्चों में एक ही बोन होती है, दूसरी बोन नहीं होती है, दोनों में से टिबिया है, फिबुला नहीं है। तो इसके साथ पैर की मूवमेंट्स भी कम है, कमजोरी आ जाता रहता है, और जॉइंट भी ठीक से वेट बेरिंग नहीं ले सकता है। तो उस केस में हमें वी नीड सम ऑर्थोसिस टू गिव देम। और जो लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस की बात करें तो एक छोटी सी चीज़ है जो सेरेब्रल, ये CTEV करके कंजेनिटल एक्वाइनोवायरस, जो उसमें टेलिपस एक्वाइनोवायरस है, वो एक कंडीशन एक अलग होती है जो बच्चों का पैर, आप अक्सर बहुत कॉमन है नोन टू कि पैर मुड़े हुए होते हैं, इस तरह से अंदर की तरफ कंडीशन उसकी होती है बच्चों के पैर जब पैदा होते हैं। बट टेंडर एज में अगर छोटी बच्चे की उम्र में जैसे ही इमीडिएटली पैदा हुआ तो विद इन ए वीक उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए, पैरों को ठीक पोजीशन कर दिया जाए और प्लास्टर में रख के उसको सीधा रखने की कोशिश की जाए, तो सीधे हो जाने के काफ़ी चांसेस अच्छे होते हैं उसके अंदर। और अगर उसको नेगलेक्ट कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं एक स्लाइड के अंदर एक बच्चे का नेगलेक्टेड फुट है, वो बिल्कुल ही पैर टेढ़ा हो चुका हुआ है जो अब सीधा करने की पोजीशन में नहीं है। सर्जिकल पार्ट डॉक्टर्स असेसमेंट करने के बाद ही बता सकेंगे कि इसको सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। सर्जिकल पार्ट जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स दे असेस द इंडिविजुअल चाइल्ड, उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है करेक्शन के लिए डॉक्टर्स के ऊपर रहता है, दे डिसाइडेड देमसेल्फ किसको कितना करेक्शन हो सकता है। बट इवन आफ्टर द पोस्ट सर्जिकल उनकी करेक्शन होने के बाद भी देन वी नीड एन ऑर्थोसिस टू मेंटेन द करेक्टिव पोजीशन, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन हो जाने के बाद में, सर्जिकल करेक्शन होने के बाद में हम बच्चे को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। स्टिल वी हैव टू टेक केयर फॉर अनदर 1 year or 2 year after the surgery also, that we can maintain a proper position of the foot. So that is the important part in the even after the post surgical also. So surgical operation होने के बाद भी जो congenital deformities हैं उसके अंदर हमें we need to take care of this so that child can be cured completely or fully or to the maximum. That's what we can say. We can never say that fully, but only the thing to the maximum itself. That is the ज़्यादा से ज़्यादा क्योर कर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर जाए बच्चा, that is the important thing उसके अंदर जी। So we got some other indication. Do you have anything, sir? कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, एक तो कंजेनिटल में एक होता है बिल्कुल एब्सेंस ऑफ लिम्ब फॉर्मेशन ही नहीं होता। कुछ में होता है डिफॉर्म्ड लिम्स जो है, डिफॉर्म्ड पोजीशन में जो होता है जिसमें प्रॉपर वेट बेरिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ में होता है शॉर्ट नहीं, प्रॉपर लेंथ का नहीं होता है, या ऊपर का पोर्शन शॉर्ट होगा या नीचे का पोर्शन, जैसे फीमर में शॉर्ट हो सकता है या टिबिया फिबुला में भी शॉर्ट हो सकता है या फुट में शॉर्ट हो सकता है।
सो इस तरह का भी मतलब डिफॉर्मिटीज रहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट वी हैव टू असेस द केस. सो लोअर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस जो देते हैं जिसमें शॉर्ट है, शॉर्ट में जो है तो ऑर्थोसिस जो हम देंगे उसमें दैट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑर्थोसिस. मीन्स द रिमेनिंग मिसिंग पार्ट we will extend it artificially by means of orthosis, and the total weight borne is by the orthosis itself. So उस तरह का भी congenital deformities में orthosis देते हैं, मतलब weight bearing point of view to make the patient ambulatory and to make the patient stand with support. So उसमें ये होता है. कुछ deformities को correct करने के point of view से देते हैं, that is corrective orthosis and preventive orthosis, वो भी होते हैं. तो इसका इन जो भी orthosis देते हैं इसमें मेन फाउंडेशन जो एक कंपोनेंट पार्ट है दैट इज फुटवेयर, सर्जिकल शूज, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कुछ फुट डिफॉर्मिटीज जितने भी हैं सारे डिफॉर्मिटीज आर दैट इज अकोमोडेटेड इन द सर्जिकल फुटवेयर इटसेल्फ फर्स्ट. उसके बाद फिर ये जो ऑर्थोसिस का जो कंपोनेंट पार्ट्स है दैट इज फिक्स्ड इन द फुटवेयर. देन द रिमेनिंग पार्ट्स आर असेंबल्ड एंड द पेशेंट इज वेयरिंग दैट ऑर्थोसिस. So along with the orthosis, again the patient also needs a supportive appliances for walking aids like sticks, crutches, walkers. ये भी इस्तेमाल करना होता है जब अगर दोनों पैर में अगर डिफॉर्मिटीज अगर होते हैं तो पेशेंट को इन सपोर्ट सहारात्मक उपकरण इनको भी पेशेंट को साथ लेना होता है. इसके अलावा हमारे और इंडिकेशंस होते हैं, जैसे बड़ा कॉमन है एक्सीडेंट्स, जो कहीं भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पेड़ से गिर जाते हैं गांव में, कभी किसी बैलगाड़ी से साइकिल से टकरा गए या मोटरसाइकिल्स सिटीज़ के अंदर, या कोई भी मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना या सर के नीचे सर्वाइकल बोन में कहीं भी चोट लग जाना. जो सर्वाइकल की चोट होती है उसकी वजह से तो क्वाड्रिप्लीजिया मीन्स दोनों हाथों में भी पैरालिसिस आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी एक किस्म की बेड पे हो जाती है, मूवमेंट नहीं होती है. और जहाँ आज हम लोअर एक्सट्रीमिटी की बात कर रहे हैं तो जब इंजरी लोअर पार्ट में लिम्ब आती है स्पाइनल के लोअर रीजन के अंदर, लंबर रीजन के अंदर, जिसकी वजह से टांगों के नीचे की जो हिप से नीचे वाली जो पोर्शन है वो एक पैरालाइज इसी वजह से होती है. जो कमांड ब्रेन से आ रहा है वो वहाँ तक आके रुक जाता है, मतलब जिस लेवल पे इंजरी होगी उसके नीचे हाँ जी, हमारा पार्ट इफेक्टेड उसके पार्ट इफेक्टेड होता है, क्योंकि हमारी नर्व्स इसी तरह से डाइवर्ट हो रही हैं. हमारी ब्रेन से जो नर्व हमारी सप्लाई हो रही है जो स्पाइनल कॉर्ड में से निकल के वो ऊपर के पोर्शन से वो हाथों में जा रही हैं और नीचे आती हैं तो वहाँ से हमारे पैरों में जा रही हैं. तो हमारे हर शरीर के हिस्से में हमारी एक नर्वस सिस्टम है, एक हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है. वो सारा सिस्टम जहाँ से वो डैमेज होता है उसके आगे का कम्युनिकेशन कट जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उतना हिस्सा जो है काम करना बंद कर देता है. जैसे लोअर पोर्शन में अगर डैमेज हो जाती है तो इवन कई दफ़ा बाउल भी हमारा काम करना बंद कर देता है. हमारे पेशेंट्स को इवन अपना बाउल क्लियर करने के लिए भी प्रॉब्लम आती है. खड़े होना, बैठना, इवन मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स सारी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एक कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाता है पेशेंट. बट with the help of an orthosis, with the help of this therapy that which keeps on strengthening the muscles, and फिर साथ में जो सपोर्टिव ऑर्थोसिस लगाते हैं जो दोनों पैरों में, आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर एक पेशेंट है जिसको पैरों में दोनों पैरों में देख रहे हैं आप, उसका पैरालिसिस हो गया हुआ है ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं उसने एक अपना यूरिनरी बैग भी लगा रखा है, जिसके कैथेटर लगा रखा है, क्योंकि उसको यूरिनरी कंट्रोल भी नहीं है उसके साथ में. सो उसने वो बैग भी साथ में लगाया हुआ है, साथ कैरी करके चलना पड़ता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू पास द यूरिन हिमसेल्फ इटसेल्फ. वो अपने आप ही उसमें बैग में जो गैदरिंग बैग है उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है. देन समवन हैज़ टू हेल्प हिम टू क्लियर इट. सो इस तरह से जो ये पेशेंट आते हैं, ये एक वन ऑफ द इंडिकेशन है जिसके अंदर ये ट्रोमेटिक जो एक्सीडेंटल या ट्रोमेटिक जिसको कहते हैं हम लोग, वो उसकी वजह से ऑर्थोसिस लोअर लिम्ब के अंदर उनकी ज़रूरत पड़ती है. और उसके साथ पेशेंट को एम्बुलेशन मींस एक मूवमेंट पेशेंट की बनी रहती है. पेशेंट के चलने से और उसके बैठे रहने से दोनों की वजह से देखिए आप उसको एक साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट पड़ता है. अगर वो बेड पे बैठा है या व्हील चेयर पे बैठा है, टोटली डिपेंडेंट है, तो उसकी साइकोलॉजिकली काफ़ी डाउन हो जाती है, वो अपने आप को बहुत डिप्रेस समझने लगता है. और अगर किसी भी सपोर्ट के साथ, किसी सहारे के साथ अगर वो वॉकिंग शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, एक तो उसकी बॉडी मूवमेंट करती रहती है, एक फिट रहती है, दूसरा उसका साइकोलॉजिकली जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है, एकदम से डाउन नहीं होता है.
सो ऑल द वे इट हेल्प्स द पेशेंट, द यूजर, इसके ऊपर मदद करता है वो. स्पाइनल इंजरी केसेस में एक्चुअली क्या होता है, मीन्स आफ्टर स्पाइनल इंजरी इसका भी वही सेम एक्यूट स्टेज जो होता है दैट इज़ फॉर 2 months. 2 months एक्यूट स्टेज में रिकवरी स्टेज होती है. कुछ पेशेंट सम पार्ट सम सेंसरी लॉस या कुछ इसमें गेन करने की कोशिश होते हैं. कुछ मसल्स भी फंक्शनिंग होने का चांसेस रहता है इसमें स्पाइनल इंजरी में भी. सो 2 months जो है इनको कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं. सो मेन जो है प्रोटेक्टिव पार्ट होता है स्पाइन, रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं वो प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन करने का. उसके लिए ऑर्थोसिस में उसका स्पाइनल ऑर्थोसिस इसके लिए अलग प्रिस्क्राइब करते हैं. तो उसके साथ ही विद सपोर्ट ही पेशेंट को बिठाया जाता है. विदाउट सपोर्ट पेशेंट को बिठाया भी नहीं जाता. अदरवाइज 2 months जो है कंप्लीट बेड रिडन ही रखते हैं. बेड रिडन में इनको बाकी ध्यान भी रखना पड़ता है. उस पोजीशन में जो पैर जो ऑलरेडी पैरालाइज्ड है, पेशेंट्स को डिफॉर्मिटीज डेवलप करने का चांसेस रहता है, डिफॉर्मिटीज लाइक फुट ड्रॉप. तो उसके लिए भी हम लोग ऑर्थोसिस देते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी में, दैट इज फुट ड्रॉप स्प्लिंट्स करके देते हैं. तो एंकल लेवल में फुट को प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन करने के लिए, ताकि उस पीरियड में पेशेंट डिफॉर्मिटी डेवलप ना करे. जी. क्योंकि एक बार डेवलप करने के बाद फिर अगेन टू मेक द पेशेंट स्टैंड एंड वॉक विल बी ए प्रॉब्लम. तो इसलिए प्रिकॉशंस इन एडवांस में हमें लेना पड़ता है. तो इसमें एक्चुअली पैराप्लेजिक्स में मेन क्या है, सेंसरी लॉस. इसमें इन कंपैरिजन टू पोलियो अगर आप देखेंगे, पोलियो में सेंसेशन रहता है, मसल पावर नहीं रहता है. यहाँ सेंसेशन भी नहीं है, मसल पावर भी नहीं है. बोन्स आर देयर, जॉइंट्स आर देयर, मूवमेंट्स आर देयर, बाकी सब ठीक है. बट सेंसरी एंड मोटर पार्ट इज अफेक्टेड. दैट इज अफेक्टेड एक्चुअली इसमें. तो इसमें एक मॉरल बूस्ट के लिए जो इनको जो ऑर्थोसिस एक्चुअली जो देते हैं, पेशेंट अपने आप एक एरेक्ट पोजीशन में अपने आप को देख के एक जो बेटर फील करते हैं, उस पर्पस के लिए भी लोअर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस जो इसमें नॉर्मली दिया जाता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पैराप्लेजिक पेशेंट्स आर व्हील चेयर बाउंडेड, बेड पे रहते हैं, उसके बाद व्हील चेयर में आ जाते हैं. बस इतने ही लाइफ तक के लोग नॉर्मली यूज टू होते हैं. बाकी ऑर्थोसिस पहन के चलने के लिए हर एक तैयार नहीं होता, एक लेजीपन भी हो जाता है. जी. तो एरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक द ब्लड सर्कुलेशन इन द लोअर एक्सट्रीमिटी ऑल्सो. अगर प्रॉपर एरेक्शन में रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी लोअर एक्सट्रीमिटी बेटर हो जाता है उसमें. एंड एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक फुल हाइट में जब पेशेंट खड़ा रहता है, एक उसको एक साइकोलॉजिकल एक फीलिंग भी होता है, हाँ आई एम स्टैंडिंग विद सपोर्ट, एक फीलिंग होता है. एंड दे कैन ऑल्सो वॉक. ऐसा कुछ नहीं है कि वॉक नहीं कर सकते हैं, दे कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज लाइक दैट. सो मीन्स इसमें इनका वॉकिंग जो पैटर्न जो होता है, इसमें नॉर्मली 4 पॉइंट जैसे राइट लेग, लेफ्ट लेग, इस तरह के वॉकिंग पैटर्न्स बहुत कम करते हैं पैराप्लेजिक्स में. तो ये ज़्यादा ये कोशिश करते हैं लोग क्रचेस के साथ जंप करते हैं. दैट इज़ नोन एज स्विंग टू एंड स्विंग थ्रू गेट्स करके 2 डिफरेंट क्रच गेट्स होते हैं इनमें, इन पेशेंट्स के लिए. जी. तो इसमें जो है दोनों लेग क्रच तक जो है जंप करना, दैट इज स्विंग टू. उसके बाद दूसरा जो है क्रचेस के बियॉन्ड जो जंप करते हैं, दैट इज स्विंग थ्रू. दैट इज द फास्टेस्ट क्रच गेट, जो नॉर्मल पर्सन से भी ज़्यादा फास्ट चलते हैं उसमें. तो उस तरह के दोनों अडॉप्ट करते हैं एंड पेशेंट्स आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज. अडैप्टेशंस मतलब डिफरेंट होती हैं कि जिस लेवल पे इंजरी हुई होती है, अगर पैराप्लेजिक है या क्वाड्रिप्लेजिक है. पैराप्लेजिक्स में भी उसी तरह के बिलोनी लेवल भी होता है, बोनी लेवल भी होता है, एंड हिप लेवल तक भी होता है. कुछ इवन ट्रंक के साथ भी, स्पाइन के साथ भी अटैचमेंट लोअर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस भी अटैचमेंट्स करते हैं. सो तो इन्वॉल्वमेंट जहाँ तक है वहाँ तक लोअर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस भी प्रोवाइड किया. और जो मूवमेंट्स की बात आ रही है, जो जैसा मनोहर साहब बता रहे हैं कि कुछ लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, बट ये सारा हर एक की एक विल पावर के ऊपर होता है. अगर पेशेंट चाहे कि सोचे कि हाँ मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मेरी विल पावर हर पेशेंट की जिसकी स्ट्रांग होगी वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर लेता है. और जिसकी विल पावर ठीक नहीं होती है या पुअर होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो व्हील चेयर पर रह जाते हैं या बेड पर रह जाते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते. हमारी राय हर किसी को है, हमने बहुत से पेशेंट ऐसे देखे हैं जो पैराप्लेजिक होते हैं एंड दे डू देयर जॉब, अपना जॉब भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं, और सब जगह पे अगर जॉब में थे पहले एक्सीडेंट से पहले तो जॉब भी करते हैं, मैनेज करते हैं, कैलिपर के साथ में मूव करते हैं, अपना घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, सब काम वो अपने करते हैं. उनको कोशिश करनी चाहिए अपना एक विल पावर अच्छी स्ट्रांग रखनी चाहिए कि वो भी अच्छा चल सके. क्योंकि ना चलने से एक तो उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट.
जी। तो उसकी वजह से हैवी वेट होने की वजह से और भी बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे ही पेशेंट को स्ट्रगल करनी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, ताकि वो एक मोबिलिटी बन सके उनकी, चलने की चल सकें। तो प्रॉपर फंक्शनल होने के लिए ट्रेनिंग और Training, yes. जो पेशेंट है उनको अच्छा कॉन्फिडेंस लाने के लिए काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा Counseling भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कुछ कंडीशंस हमने देखे जो इंडिकेशंस हैं, जिसमें हमने देखा कि पेशेंट्स को किस तरह से लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये अभी तक हमने डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस्ड सम फ्यू इंडिकेशंस. वी विल हैव मोर डिस्कशन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं। और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। Welcome back to our discussion. We are discussing indications. We will be discussing more about this with our expert. So let's continue our discussion. So far we were talking about the indications for the lower limb orthosis, that why do we need lower limb orthosis, what are the reasons that behind that a person require an orthosis to make himself or herself mobilize, or to make the give the support to the weaker part of the limbs. But how does it work? What are the main purpose of this orthosis? We'll talk on it, and then later on we can talk on the different designs and different available in the market, which is now advancement, or the previous one also, which are the conditions that we have got different type of the orthosis. So we'll show you that. First we'll talk about the purposes, how, why do we need this orthosis, lower limb orthosis is required for the weak part of the body. So first slide that shows that to stabilize, first thing is that to stabilize the joints, because the joints, the slide is showing that you can see one of the girl that she has got girl, she's having a lower limb or lower limbs which are the knee is not stabilized. You can see the knee is going backward posteriorly to the this lower limb, that you can see the knee level is going posterior to that, whereas the knee is not stabilized. I am not able, why the slide is not on the screen. The slide can be shown to, that is we need, yeah, you can see this, the slide is over here, that you can see this, the legs are, the knee is going posteriorly, which is abnormal, which is not normal. So knee needs some support which can at least stabilize the knee joint, so that a patient can stand erect or on a proper weight bearing. If the patient continues with this type of the condition, the knee will be deteriorated further. This knee will go to the further hyperextension. So we got another slide also later on that we will give you. We will show you that slide, that which makes this girl standing straight, and the girl can walk very freely without any support. She is walking very actively. She is doing very good. She has got a polio on both the legs, both lower legs. So below the hip joint, hip is all right. So above the knee, she has got the problem, and knee is not stable. That's why we have given this KFO, that is a knee ankle foot orthosis, that gives the stabilization and provide the mobility. Actually, in this, in purpose of orthosis, normally these deformities the patients develops due to imbalance of the muscles. Imbalance of the muscles means all the muscles are not paralyzed. Some group muscles are working, some group muscles are paralyzed. The powerful muscles, they will try to pull the leg towards that direction, and the paralyzed muscles get stretched actually. So due to this, the patient develops normally the deformities. The slide what you have shown it in this is, that is the patient's knee muscles are weak. Knee muscles is one group is 0 and other group is powerful. In this, the deformity is known as genu recurvatum,
means hyperextension of the both the knees. In this, the anterior group muscles are powerful and the posterior muscle groups are weak, and because of this the legs, both the legs are going into backward. That is known as hyperextension. Normal extension is 180 degrees, and this, if it goes beyond that, and that is known as hyperextension. Another deformity, if the posterior muscles are powerful and the anterior muscles are weak, then the patient will get flexion of the knee, means the knee will go into flexion, means the patient is unable to stand. In this, the patient is walking with a backward movement, and that if the patient wants to stand, means then he needs some support. Then what they will do, the patient keep their hands on the knee and they will try to push the knee backward to stabilize the knee. So these are the methods actually patient normally adopt to make themselves stand actually. And standing erection is proper position is different, and standing with a deformed leg is a position different. And whatever the orthosis we are providing in these deformities, that is to make the patient stand erect with support, means the knee is at 180 degrees. For that, the lower extremity orthosis is provided where the patient can stand in a proper way and the patient can walk with the help of walking aids. So this slide, if you see, in this the patient is wearing lower extremity above knee orthosis. This is also known as KAFO, knee, ankle, foot orthosis. In this we are having footwear is there, then the ankle joints are there, then the knee joints are there, then the thigh bands are there. So these are supportive to the extremity and to keep the limb in correct alignment. So that is the main purpose of this orthosis, and to make the patient stand in a proper functioning position and to make the patient ambulatory with the help of some walking aids. So this is known as KAFO. So this KFO which you are seeing on the screen, this is an AFO which is light in weight, and it has got freedom for the patient, for the user to use any type of footwear. Earlier we have shown that conventional type of the orthosis which was fitted with a traditional footwear, that was the shoe, black color shoe which was earlier being used. So the patient was only confined to that particular footwear only. That was the shoe only the patient has to use all the time. Whereas in this orthosis which is being given in light in weight, it is very much in use now in throughout the country itself, and it gives the freedom to that patient, because like so many freedoms are there. Like we go to that worship place, either it's a mandir, masjid, gurdwara, wherever we go, and we have to remove our footwears. We can't go with our footwears to any worship place. So in this case, patient can also remove the shoes like a normal person itself, and can walk with the caliper itself, because they don't need to remove the caliper along with the shoes. So shoes can be removed separately, and patient can walk into the any worship place wherever they want to go as per their own requirement or wherever their wish. And second is that that patient is free to use any kind of the footwear. Like in the winters can use the shoes, in summers can use the sandals, and whatever they want, and they feel themselves as in the community itself, because we are changing our shoes whenever we want. And whereas if the caliper user in the conventional caliper, patient has to be in the particular shoe throughout the 12 months, all the seasons. Whereas now this lightweight caliper which gives the freedom to the patient to use any kind of the footwear. That you have seen that a girl is using that sport shoes, wherever we have seen some people are using Punjabi jutti, where some of the people they are using sandals also. So they can walk barefooted also, like if they go to the worship place, but we don't advise them to walk barefooted for a long time. It's only for short distances they can walk barefooted, or at home itself they can use it, but we advise them to use the footwear along with it, because otherwise AFO will worn out, this which is being fitted to the KFO. So they, just to protect that, they need to use the footwear itself. At the chappals also, or whatever they want, they can use it, they should use it. So in this it provides the freedom to use any kind of footwear. Any kind of footwear. This is a very good thing. It has come up in for last few years. It's very good in use, and earlier which was the conventional was very complicated. There was problem for the repair of those orthosis, because any artificial thing
even it's a orthosis or prosthesis, requires some maintenance also. So these are the maintenance free, means the patient doesn't require maintenance at least 1 year, 2 years. Sometimes it depends on the maintenance of the individual person. If the person is very careful about the orthosis and maintaining it properly, it means they don't require to go for the maintenance for 2 years itself. So they can continuously use, because whereas the conventional type, the shoe was wearing off all the time after 3 months, 4 months, 6 months. So patient had to go to an orthotist or to the rehabilitation workshop to get it repaired after every 2-3 months. But now, and there's another benefit of this orthosis, because due to this, it has been the weight has been reduced very dramatically. It's a very light in weight to comparative to the previous one also. So the patient is able to walk फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, वेरस हम अगर कहें कि पहले कन्वेंशनल के साथ 1 किलोमीटर चल सकता था, तो अभी 4 किलोमीटर चल सकता है, बिकॉज वेट इज़ लाइट एंड पेशेंट की कैपेबिलिटी, जो वॉकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है. सो पेशेंट इज़ वेरी फ्री एंड दे फील वेरी हैप्पी विद दैट एंड फ्रीली दे आर वॉकिंग विदाउट टायरिंग देमसेल्फ. सो इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो लाइट वेट ऑर्थोसिस जो अभी आज के टाइम में यूज़ हो रहा है. वी आर हैप्पी दैट इट इज़ बीइंग यूज्ड, बट स्टिल we have to advise to the government also, because in the government schemes, wherever they are giving free of cost, they still are not recognizing this type of the orthosis. They still want that it should be given with the surgical shoes itself. So we want that government should think of that. They can think of the benefit of the users. They can think of the users, at least they are happy with this type of the orthosis. So hope so that will also be come into the picture, because अभी पिछले 8-7 साल में इतना चेंजेस आ गया, तो और 1-2 सालों में वी होप सो कि बहुत अच्छा चेंजेस आ जाएगा. सो वी गॉट सम मोर ऑर्थोसिस टू शो. यू कैन सी दिस hip, knee, ankle, foot orthosis, whereas hip is also involved in this child. Hip is also weak. He doesn't have good control on the hip also, because hip is not stabilized. So we need to give a hip joint. In the orthosis, you can see that lying with the child sitting on the ground. It has got a hip joint as a pelvic band. That is also that requires over here. So this is the bilateral side. The patient has got both the lower limbs are affected, and दोनों पैरों में इसको lightweight caliper ही दिया गया है, and he has got a freedom to use any kind of the footwear. Still he is standing on in a parallel bar, but trying to leave the parallel bar, छोड़ के खड़े होने के लिए initial stages पे need some training also. So इसके लिए ये दोनों पैरों में bilateral KFO यूज़ करने के लिए बच्चे को, and same thing that freedom to use any kind of the footwear is over here, lightweight. So actually in olden days, actually all the orthotic appliances they used to make out of iron. So iron, the material is actually, it's a heavy material, and all the joints, mechanical joints are made out of iron, and wherever you want to support the body part, so you have to provide a mechanical ankle joint on the side of the anatomical level. So that was known as a conventional orthosis, and that was also known as a caliper. There are different names were there. So it was heavy in weight, and the maintenance problems were there, and these orthoses were fixed to the leather shoe, leather footwear. Actually it is fixed to that, and even a cobbler, if he wants to repair the heel of the shoe, if it is worn out after 3 months, it is very difficult to repair it. For repairing, again the patient has to go to a orthotist, and he has to get it detached from the ankle joint, the footwear, and the footwear we will take it to the cobbler. He will get the heels and the sole is repaired, and that is fixed back again to the caliper. So this is a long process actually, and these are the maintaining problems actually the patient used to get. So now day by day a lightweight concept is already in the market, and now almost that olden calipers are already discarded in all the centers. Only one center actually, the in all India, means in India, that is Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, is manufacturing the types of joints actually. That is, now they have gone to lightweight joints. The joint part is made out of stainless steel, and the uprights, the bars are made out of duraluminum. So it's light and weight, and that is rust free, and those joints are now in use actually. So if you see that the lightweight orthosis made out of polypropylene, the joint part again we are using the same joints which are manufactured by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India.
So the joint part you need a metallic one, then other part you need out of a plastic one. So where you can use any normal shoe that is replaceable. Patient himself can change any colorful shoe the patient can use for party wear also. So that is in use actually. So here the patient, what you are saying, that is both the legs. This the hip is also involved, means the hip muscles also weak. In hip muscles what actually happens, rotators are weak actually normally. If you don't provide a hip joint and pelvic band, what happens, the leg moves towards lateral side or towards medial side. So there is no control at the hip joint and there is instability and the patient is unable to keep his steps in a proper positioning. So that's why the attachment of hip joint and pelvic band is also provided in this case. So this is one step above it. So this is known as HKFO, hip knee ankle foot orthosis. So this is one of the orthoses that we have seen it. So we got so many other slides to show that. You can see the another slide. This is a girl. She's using an unilateral, means one side KFO, which has got 3 inches shortening. She has got, because of polio, some of the cases due to they develop the weakness as well as the shortening, because they don't the leg doesn't develop properly with the range of the other normal leg also. So there's a shortening also on this side, 3 inches shortening is there, and it has been accommodated into the normal footwear because she is a school going girl, and of course she has been she has grown up now, she is in the college and she has passed college also, and she is in the job itself. So this is the picture when she was young and going to the school period. So she has been given with the KFO, which is lightweight KFO, which can be used with the school shoes also. If she wants to use the school, going to school shoes, and when she comes back to the home, then she can use the sports shoes for the games, also for the supports. So this type of the KFOs, which are light in weight, having even compensation means the shortening, the discrepancy, leg length discrepancy is there, that can be accommodated into the orthosis itself. It has to be, otherwise in the olden days it was being maintained by the giving a thick sole shoes, with the means 3 inches sole has to be given under the footwear. It was difficult to lift that heavy shoe, that increased the weight of the orthosis also, whereas in this kind of the orthosis, patient has got all the freedom, can walk freely, and even barefooted also, as I said in the previous one also. She can remove the shoe and go to the worship place anywhere she wants to go. This can be used in the any condition of this orthosis. सर जैसे ये आपने हमें डिफरेंट लेवल्स के ऑर्थोसिस बताए हैं, मेन बात इसमें होती है पेशेंट्स के साथ हमारी एक कॉस्मेटिक अपीयरेंस की। तो जैसे अगर हम उस एस्पेक्ट की बात करते हैं कॉस्मेटिक अपीयरेंस की, तो उस केस में हमारे मतलब अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बिकॉज इट्स द मेन कंसर्न ऑफ द पेशेंट्स। बिल्कुल ठीक आपने बात करी है। ये जो हम आपको जो लाइट वेट और मॉडुलर ऑर्थोसिस दिखा रहे हैं, इसके अंदर एक ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा कॉस्मेसिस का एक जो पुराने कैलिपर में जो कन्वेंशनल कैलिपर जो थे उसके अंदर आता था, वो एक फुटवेयर का ही आता था, बाकी तो ट्राउज़र या पैंट के अंदर या सलवार के नीचे ही चला जाता था। सो मेन विजिबल पार्ट क्या होता था, फुटवेयर। और इसके अंदर क्या है, फुटवेयर तो आप विच एवर यू वांट, कोई भी फुटवेयर पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। लेडीज़ हैं तो दे पुट ऑन देयर लेडीज सैंडल्स, बट विदाउट हील वाले नहीं पहन सकते हैं। यही एक लिमिटेशन रहती है इसके अंदर कि आप ज़्यादा हील नहीं पहन सकते हैं। और एक दूसरी लिमिटेशन रहती है कि पीछे से बैक स्ट्रैप जरूरी होना चाहिए, पीछे से सपोर्ट जो ऑर्थोसिस को आपके पैर फुटवेयर के साथ में बांध के रखेगी। सो दीज आर द टू माइनर थिंग्स ओनली। अगर हील नहीं पहनेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पीछे एक स्ट्रैप होगा तो ज़्यादा ही अच्छा है, दोनों पैरों में सपोर्ट अच्छी रहती है। ये कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा लुक देती है। इसके साथ आपने जो कितनी भी स्लाइड्स हमारी जो पहले देखी हैं आपने, एक लड़की जो है आम टाइट पजामा भी पहने हुए हैं, सलवार कमीज भी पहने हुए हैं, तो उसके साथ में पहन सकते हैं। इवन जो मेल यूज़र्स हैं वो ट्राउज़र्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, और कहीं भी उनको ऐसा दिखाई नहीं देता है, एंड दे नेवर फील कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर नॉर्मल पीपल। सो अपने आप को एक बड़ा अच्छा एक विद इन द कम्युनिटी और विद इन एक स्ट्रीम लाइन में समझते हैं कि हम लोग एक नॉर्मल आदमी की ही तरह हैं, और एक्चुअली दे आर लाइक ए नॉर्मल। दिस इज़ अ मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है जो बचपन में उनको हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। उस वक्त इतनी पोलियो वैक्सीन का इतना चलन नहीं था, बहुत कम हुआ करती थी। आज के टाइम में जितनी पोलियो वैक्सीन दी जा रही है पहले नहीं होती थी। और पोलियो का एक सबसे बड़ी एक ये चीज़ है कि जो पोलियो आज
पिछले 10 साल से जो हम अभी देख रहे हैं इरेडिकेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके रिजल्ट हमें अगले 40-50 सालों में देखने में मिलेंगे, जब ये हमारे बच्चे जो आगे बहुत कम हो जाएंगे। आज के टाइम में 90-95% इम्प्रूवमेंट है, अभी की पोलियो के बच्चे नहीं आ रहे हैं, नए बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, बट उम्मीद करते हैं कि आगे भी पूरा कंट्रोल में रहेगा। जो जिसको 10 साल पहले हुआ है तो उसका तो भी आगे की 40-50 साल की, जो 60 साल की बाकी की ज़िंदगी है, वो तो एक पोलियो के साथ ही चलने वाली है। उनको एक ऑर्थेटिक सपोर्ट, जिसको हम लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस के नाम से आज बात कर रहे हैं, वो एक ऑर्थोसिस जो है, वो ऑर्थेटिक सपोर्ट जो है, वो उनको तब तक चाहिए जब तक वो हैं। और ये सर्विसेज आज हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे मिल रही हैं और बड़ी अच्छी बात है। सब जगह पे एक इस चीज़ की अवेयरनेस और लोगों के अंदर एक जोश और हर चीज़ मिल भी रही है, सबके पास अवेलेबल है, यूज़ कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है इस चीज़ के बारे में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। Nowadays, actually, the plastics are playing an important role in orthotics and prosthetics. Actually, plastics and fiberglass. So these are the two new materials which are normally used, which is replaced completely the conventional system, which is made out of metallics. So metallics were normally not acceptable to all the patients. So that is due to cosmetic point of view, cosmesis, and mainly female patients, they always discard these metallic orthosis. Males still they compromise, but females they don't compromise for a cosmesis point of view. So the orthosis nowadays what we are making is all made out of plastics mainly. It's a lightweight orthosis, and the bulkiness also very less. This almost the thickness of the orthosis is almost at 3 mm to 4 mm thickness is there. So it's not visible and light in weight. Functionally that is better. It is durable, it is washable, it is neat and clean. And even for children, we can use colorful materials, plastics like. So they like the colorful appliances in children also. So that's why, and you can insert in any normal shoe, that's why this is not visible. And any dress the patient can use it now. And previously when the conventional orthosis was in use, we used to advise to the patient to wear bell-bottom pants that time. That time the design was there. To some patients we also advise for using a chain in the pant on the medial aspect, so the pant can be opened directly, so they can wear it and they can close it, so the orthosis is not visible outside. So some methods we used to tell the patient. Even patient is also very intelligent. They can adopt a different methods to not to show the orthosis outside the cosmetic point of view. सर, ये आपने बताया कि कुछ पॉइंट्स जो पेशेंट्स को ध्यान रखने चाहिए व्हाइल वेयरिंग द ऑर्थोसिस, और इनिशियली आपने बताया था कि मतलब अगर हम ऑर्थोसिस की बात करते हैं तो उसमें एक टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज डिफरेंट प्रोफेशनल्स वर्क टुगेदर टू असेस द पेशेंट एंड टू गिव द इंटरवेंशन प्लान फॉर द पेशेंट। इसमें पेरेंट्स का और फैमिली का क्या रोल है? पेरेंट्स को एक्चुअली ऑर्थोसिस बनाने के उसका मेंटेनेंस, उसका केयर, उसके बारे में सारे डिटेल्स जो है पेशेंट्स को इसको एजुकेट करना चाहिए होता है. एंड वंस एन ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट फिट या ऑर्थोसिस, these patients are referred to physiotherapy and occupational therapy. That is for gait training point of view. एक बार ऑर्थोसिस बनाने के बाद पेशेंट को घर भेज देने से काम नहीं चलता. उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है. ट्रेनिंग मीन्स हाउ टू वॉक, हाउ टू ऑपरेट द ऑर्थोसिस, हाउ टू यूज इट, व्हाट केयर ही हैज टू टेक फॉर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ये सारे ट्रेनिंग जो है इनको ऑर्थोसिस बनाने के बाद देते हैं. पहले ऑर्थोसिस बना के फर्स्ट विल डू द ट्रायल. एक्चुअली ट्रायल में फिटिंग हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कहीं हर्ट नहीं कर रहा, कहीं लूज ज़्यादा टाइट नहीं है, कहीं शार्प एडजस्ट नहीं है, फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है. ये सारे जो है देख के द पेशेंट हैज़ टू बी हैप्पी विद दैट एंड वी शुड बी हैप्पी विद दैट. एंड दीज अप्लायंसेस वी आर हैविंग एट अप्लायंस क्लिनिक्स ऑल्सो देयर. इन दैट ऑल द टीम members will join the clinics and they will assess the case along with the orthosis also, and the orthosis is approved. Then we finalize the orthosis, then the final delivery is done. So the system is already there. So all teamwork and the parent supports is also very much important for the patient. And we have discussed some indications. With that, the purpose of orthosis, और हमारे expert ने बताया कि different
लेवल्स में हमें ऑर्थोसिस की किस तरह से ज़रूरत पड़ती है, और उसमें हमने देखा कि अगर हम लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं जो कि आज की हमारा चर्चा का विषय है, उसमें हमने देखा कि नी एंकल फुट ऑर्थोसिस या हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, इस तरह के ऑर्थोसिस की हमें ज़रूरत पड़ती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट और काइंड ऑफ इंजरी द पेशेंट इज हैविंग। ये अभी तक हमने डिस्कस किया। वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very. कप को टच करो जल्दी से। कप को. Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास. Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया,
matching and identification, fine motor skills, eye-hand coordination, concept of vegetables, fruits, body parts, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है ये लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस, और अभी तक हमने अपने डिस्कशंस में हम देखा कि किस तरीके से एक ऑर्थोसिस की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट कंडीशंस में, और प्रोफेशनल की हेल्प से हम कैसे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द ट्रेनिंग टू द पेशेंट एंड विद द काउंसलिंग टू द पेशेंट टू बूस्ट अप हिज कॉन्फिडेंस लेवल। तो इसके बारे में हम और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो आइए हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि मेंटेनेंस की बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को या यूज़र को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा है कि उनको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या खराबी आ सकती है, किस तरह से ठीक हो सकता है। एक तो ये उनको जिस भी ऑर्थोटिस्ट के पास बात कर रहे हैं, जिससे भी वो ऑर्थोसिस बनवा रहे हैं या फिट करवा रहे हैं, तो उससे ये सारी जानकारी लेनी चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे उनको पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि हमारे प्रैक्टिस के अंदर, इतने सालों की प्रैक्टिस में, हमारे पास पेशेंट जो यूज़र है वो बहुत दूर दूर से आते हैं, कई पहाड़ों से आते हैं। उनको दूर से आना पॉसिबल नहीं होता है। अगर एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई है उसके लिए अगर आप वहाँ से यहाँ तक आएंगे, दिल्ली तक आना बहुत मुश्किल है, या कहीं भी सेंटर तक जाना दूर पड़ता हो तो बहुत मुश्किल काम है। तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए कि वो अपने आप उसको मैनेज कर सकें। क्योंकि वेयर एंड टियर तो हर चीज़ की होती है, हर चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो उसको कहीं ना कहीं खराबी आने के चांसेस रहते हैं। तो अच्छा यही है कि उसके बारे में पूरी जानकारी लेके रखें। जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स या उनके नज़दीकी जो सिबलिंग्स हैं, जो उनके रिश्तेदार, नज़दीकी चाचा ताऊ कुछ भी हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी हो उसके घर का बड़ा सदस्य, वो उस चीज़ के बारे में जानकारी रखे ताकि वो उसको कुछ भी खराबी आए तो उसको मेंटेन करने का कैसे तरीका है, क्या करना है। बच्चों के अंदर एक सिर्फ ये रहती है कि उनको, बच्चे ग्रोइंग एज होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको हर 4 महीने 6 महीने के बाद में एक ऑर्थोटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना बच्चा ग्रो कर गया तो जो अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, जो ऑर्थोसिस यूज़ कर रहे हैं, वो तो छोटी रह जाती है। उनको या तो उसको अल्टर करवाना पड़ता है, अमेंडमेंट करवानी पड़ती है, ठीक करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साइज़, या फिर उसको फिर चेंज करवाना पड़ सकता है। जहाँ बड़ों की बात है, एडल्ट्स हैं जिनकी ग्रोथ एक स्टेबल हो गई है, एक जगह पे आके रुक गई है, ग्रोथ है, फुली ग्रोथ है, तो उनके लिए क्या है कि जो सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई चीज़ की खराबी है, कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, हमारे एक्सपीरियंस के साथ में हमें सब पता होता है कहाँ पे क्या खराबी आ सकती है। उसके बारे में हम यूज़र को पूरी जानकारी दे देते हैं, उनको आगाह भी कर देते हैं, इस तरह से हो सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं। तो हो सकता है कुछ छोटे मोटे स्पेयर्स भी वो साथ भी अपने रख देते हैं, जो दूर रहते हैं, जो दिल्ली में नहीं रहते या सेंटर के नज़दीक नहीं रहते, तो वो अपने साथ दूर भी साथ स्पेयर ले जाते हैं। दे प्रेफर फॉर दैट, क्योंकि अगर दूर से आना पड़े, एक तो वक्त की खराबी है, पैसे की खराबी है, हर चीज़ की उसको परेशानी है। तो बेहतर यही है कि आप छोटे मोटे जो स्पेयर्स के जो चाहिए वो अपने पास रखें, और कभी ज़रूरत पड़ने पे आप उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक हम यूज़र्स को और एक राय देना चाहेंगे कि आप एक प्रोफेशनल, एक ट्रेन प्रोस्थेटिस्ट के पास ही अपने उसको कंसल्ट करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई अगर नॉन प्रोफेशनल होगा आपको गलत राय भी दे सकते हैं। ठीक से राय, गलत ना देंगे तो ठीक राय भी नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए गलत तो नहीं देंगे कोई भी, लेकिन कोई ठीक राय भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको खुद को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो एक प्रोफेशनल जो एक फील्ड के अंदर प्रोस्थेटिस्ट हैं, ऑर्थोटिस्ट हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल से बात करिए, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी
ठीक तरीके से समझाएंगे। तो ये एक मेंटेनेंस के बारे में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ द नी यूनिट्स डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट नी यूनिट्स हैं। ये एक ऑफसेट नी जॉइंट है। सर मनोहर सर, एक्चुअली नी एक जॉइंट ऐसा है जिसमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज जो है एक्चुअली डेवलप होता है। इट्स मे बी ड्यू टू एनी कॉज, इट्स मे बी ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ मसल्स, या फ्रैक्चर केसेस में भी हो सकता है, मसल्स वीकनेस में हो सकता है। तो पर्पस, हर जॉइंट का पर्पस अलग अलग होता है। सो अलग अलग मैकेनिकल जॉइंट्स हैं ये, अलग अलग मैकेनिक जॉइंट। यहाँ जो आप देख रहे हैं दैट इज ऑफसेट नी जॉइंट। ऑफसेट नी जॉइंट मीन्स नॉर्मली जो टाइप्स ऑफ नी जॉइंट्स हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक तो स्टार्टिंग में बना देते हैं सेंट्रल एक्सिस नी जॉइंट, फिर एसेंट्रिक नी जॉइंट, फिर नी जॉइंट विथ लॉक, फिर ड्रॉप नी जॉइंट, ड्रॉप लॉक नी जॉइंट, फिर ऑफसेट नी जॉइंट, फिस्ट लॉक नी जॉइंट। इस तरह के अलग अलग डिजाइंस, अलग अलग पर्पस, उसका अलग अलग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर चीज़ में इसका जॉइंट्स के बारे में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाता है। तो ऑफसेट नी जॉइंट जो एक्चुअली जो बनाते हैं दैट इज़ मेनली टू स्टेबलाइज द नी। ऑफसेट नी जॉइंट में जो इसका एक्सिस ऑफ द नी जॉइंट जो है इसका पोस्टीरियर रहता है। जो नॉर्मल एक्सिस जो देते हैं हम लोग सेंटर ऑफ द नी जॉइंट एक्चुअली नॉर्मल इसमें लेते हैं, बट जहाँ ऑफसेट नी जॉइंट के एक्सिस जो होता है पोस्टीरियर होता है। दिस इज़ टू स्टेबलाइज द नी, जिसमें मसल्स वीकनेस होने की वजह से पेशेंट को अगर खड़ा करते हैं तो लुढ़क जाते हैं पेशेंट, दे आर अनएबल टू स्टैंड। तो उसमें एक मेथड ये है जिसमें कंप्लीट लॉक लगा के बांध के रख देते हैं। तो उसमें पेशेंट चलते समय कोई मूवमेंट नहीं होता, उसमें ना पैर मुड़ेगा और मतलब सीधा रहेगा। उसमें फ्लेक्शन अगर करना है, अगर पेशेंट को अगर बैठना है तो जॉइंट को अनलॉक करके फिर उसको फ्लेक्स करके एक चेयर में बैठ सकते हैं। तो ऑफसेट नी जॉइंट में एडवांटेज ये है, नी फ्री रहेगा तो चलते समय भी नी को स्टेबल रखेगा। जो पेशेंट चलते समय नी को फ्लेक्स करके भी चल सकता है। सिटिंग में भी अनलॉक करने की जरूरत, अपने आप तो अनलॉक होता ही है वो, उसमें आराम से बैठ सकते हैं। सो वो एक एडवांटेज इसमें ऑफसेट नी जॉइंट में पेशेंट को एक्चुअली इसमें मिलता है। इसमें सिर्फ ऑफसेट नी जॉइंट में एक ही इसमें पॉइंट होता है, इसमें भी डोंट अलाउ डॉर्सीफ्लेक्शन एट एंकल। एंकल में डॉर्सीफ्लेक्शन इसमें अवॉइड करना चाहिए। डॉर्सीफ्लेक्शन अगर एंकल में अगर हो तो ऑफसेट नी जॉइंट का मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है फिर उसमें। इसलिए पेशेंट के एंकल जो है हमेशा प्लांटोफ्लेक्शन हम लोग अलाउ करते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन प्रिवेंट करते हैं ताकि उसका फंक्शन हम प्रॉपरली उसको अचीव कर सकें। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जैसा बता रहे थे मनोहर सर कि लॉक करके चलते हैं। लॉक करके तो कम्प्लीटली स्टेबलाइज है, 100% पेशेंट गिरेगा नहीं, उसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं रहता। दैट इज़ द ओनली कंडीशन व्हेन नी इज़ कम्प्लीटली फ्लेल, बिल्कुल ज़ीरो है, मसल पावर इसकी नहीं है। मसल पावर की भी रैंकिंग है 0 to 5। 0 इज़ द बिल्कुल फ्लेल और 5 इज़ गुड, एक्सीलेंट। जो हमारी हम अपनी अगर उसको रेटिंग करेंगे तो 5 में रेटिंग करेंगे। और इसके अंदर जो ऑफसेट नी जॉइंट यूज़ करते हैं तो इसकी जो रेटिंग अगर की जाए तो मसल पावर शुड बी 3+, उससे कम नहीं होनी चाहिए, तब हम इसको ऑफसेट को यूज़ कर पाएंगे। अगर नहीं उससे कम है तो फिर इसको रेकमेंड नहीं करेंगे हम इसको, तो इसको लॉक नहीं ही करेंगे ताकि उसके अंदर पूरी 100% हमें गारंटी हो जाती है कि पेशेंट गिरेगा नहीं, द यूज़र जो है उसके अंदर गिरेगा नहीं। तो इसलिए ऑफसेट नी जॉइंट तब यूज़ करते हैं जब मसल पावर 3, क्योंकि इसकी कंडीशन, इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं। ऑफसेट यूज़ करने के बेनिफिट जैसे मनोहर सर बता रहे थे कि चलते वक्त नी फ्री रहता है और लॉक नी के अंदर नी फिक्स रहता है, उसको लॉक नहीं करके चलाना पड़ता है। वो सिर्फ बैठते वक्त ही उसको हाथ से मैनुअली अनलॉक करना पड़ेगा ताकि वो नी को मोड़ सके और बैठ जाए, और खड़े होते वक्त चलने से पहले फिर लॉक करना पड़ेगा। तो ये लॉकिंग सिस्टम और अनलॉकिंग के अंदर इतना उसको बेनिफिट, ऑफसेट यूज़ करने से बेनिफिट मिलता है। बट उसको यूज़ करने के लिए मसल पावर भी कुछ होनी चाहिए उसकी जो नी के अंदर है। अगर वो मसल पावर 3+ या उससे ज़्यादा है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नी यूनिट है दैट इज़ पॉलीएक्सियल। जो क्योंकि हमारा जो एनाटॉमिकल नी है वो एक एक्सिस के ऊपर नहीं चलता है, हमारी नी की एक्सिस चेंज होती रहती है, कई जगह पे हर एंगल के ऊपर नी की एक्सिस चेंज हो जाती है। तो इसको हमने जो एक नी यूनिट यूज़ करते हैं, इट्स अ पॉली एक्सिल है, मीन्स इसके डबल एक्सिस यूज़ करने के बाद में ये हर एंगल के ऊपर अपना मूवमेंट चेंज करता रहता है और एक
फ्लेक्शन जो है, अमाउंट ऑफ फ्लेक्शन नी का है वो एक्सेस दे देता है। इसको यूज़ करने के लिए जहाँ पे सिर्फ पर्सन जो यूज़र है उसका मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी ख़राब हो गई है, लेकिन फ्लेक्शन एक्सटेंशन ठीक है, कंट्रोल कर सकता है, उसके विद इन रेंज है, तो उस केस में हम इसको जो पॉलीसेंट्रिक जो नी एक्सिस है उसको हम यूज़ करते हैं। ये सारी जो नी यूनिट्स होते हैं ये इंडिविजुअल की कंडीशन के ऊपर, उनकी क्या नी की कंडीशन कितनी है, मसल पावर क्या है, वो सब चीज़ को देखते हुए उसको किस तरह की ऑर्थोसिस यूज़ करनी है, ऑन दैट बेसिस वी डिसाइडेड, उसको प्लान करते हैं कि हम इसको क्या किस तरह का नी यूनिट इसको लगा सकते हैं। सर जैसे ये हम डिस्कस करें डिफरेंट नी यूनिट्स, और आपने बताया कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए एक Ability के पेशेंट ऊपर, जी एबिलिटी, अगर मान लीजिए एक पेशेंट है वो एथलेटिक्स में है, और तो उसको किस तरह का हम नी यूनिट देंगे, और क्या उस नी यूनिट देने के बाद उसकी प्रॉपर वो अपने फॉर्म में वर्क कर सकता है? बिल्कुल ठीक है। देखिए उसकी इंजरी पहले कितनी सीरियस है, इस चीज़ को जो वहाँ पे आपने अक्सर स्पोर्ट्स होते हैं तो आप देखते हैं थेरेपिस्ट वहाँ पे एक ज़रूर होता है, वो उसकी इंजरी का जायज़ा लेते हैं और क्या उसको सर्जरी की ज़रूरत है या किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर उनको खाली सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो आपने कई दफ़ा देखा होगा ऑर्थोसिस पहन के भी खेलते हैं। आपने कई दफ़ा क्रिकेटर्स को भी देखा है नी के ऊपर नी सपोर्ट पहनी होती है और दे यूज टू प्ले विद दैट। वो क्या होता है कि नी में कुछ अनस्टेबिलिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ सम इंजरी, क्योंकि वैसे वीकनेस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली ड्यू टू सम इंजरी, गिर गए, दौड़ते हुए गिर गए या कैसे भी हुआ तो घुटने पे चोट आ गई जिसकी वजह से स्टेबिलिटी या उसको पेनफुल है। बिकॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ गिविंग एन ऑर्थोसिस इज टू रिड्यूस द पेन ऑल्सो। सो पेन को भी रिड्यूस करने के लिए तरीका यही है कि जो उसका जो मूवमेंट्स है उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, उनको मूवमेंट्स को थोड़ा सपोर्ट कर दी जाए। सो गिविंग दैट ऑर्थेटिक सपोर्ट एट द नी लेवल इटसेल्फ ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इंजरी आप जो बात कर रहे हैं उस वक्त ओनली द डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ द इंजरी जो उसकी पर्सन की होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो माइनर है एंड कैन बी मैनेज विद एन ऑर्थोसिस पहन के आदमी दौड़ सकता है, उसके साथ चल सकते हैं उसके। एक्चुअली स्पोर्ट्स में जो है नी ऑर्थोसिस जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज मेनली मीडियोलेटर स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं स्पोर्ट्स में, उसमें वो रेस्ट्रिक्ट करना भी नहीं चाहिए। नी शुड बी फ्री बट इट शुड प्रोवाइड मीडियोलेटर स्टेबिलिटी, so displacement won't be there, so that will give more support while playing actually, so that is actually important. सो दूसरा हम बात कर रहे थे कि नी यूनिट्स की जो ड्रॉप लॉक नी जॉइंट जो बात कर रहे थे कि जो मैनुअली लॉक भी करना पड़ता है और अनलॉक भी करना पड़ता है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जो जॉइंट है, एक कैलिपर जो ऑर्थोसिस लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस जो बनी हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि नी यूनिट है और इसके अंदर एक रिंग लॉक लगा हुआ है। इसको कोई रिंग लॉक करके बोलते हैं, कोई ड्रॉप लॉक नी जॉइंट बोलते हैं। एक रिंग बना होता है जो लॉक होता है, वो एक लॉकिंग मैकेनिज्म इस तरह से है कि रिंग उसके ऊपर आ जाता है, जो एक लॉक है उसके ऊपर आ जाता है तो उसको फ्लेक्शन होने से रोक देता है, मुड़ने नहीं देता है। ओनली द थिंग जब उस लॉक को अपलिफ्ट किया जाएगा, ऊपर उठा लिया जाएगा, जैसा कि आप फ्लेक्शन वाले में देख रहे हैं कि उसको लिफ्ट कर दिया हुआ है, उसको हटा देते हैं तो वो मुड़ने के लायक हो जाता है। बट चलते वक्त इट इज़ रिकमेंडेड कि ये लॉक होना चाहिए। पेशेंट हैज़ टू मेक इट श्योर खड़े होते वक्त, खड़े होने के बाद एक स्टेप लेने से पहले कि ये दोनों लॉक प्रॉपरली अपनी जगह पे बैठ गए हैं। अगर लॉक बैठे नहीं होंगे तो पर्सन के गिरने के चांसेस हो जाते हैं, गिरने से कुछ भी चोट लग सकती है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो बेटर टू टेक अ प्रिकॉशन कि जब भी खड़े होते हैं तो इसको एक बारी हाथ लगा के चेक कर लेते हैं कि ये लॉक हो गया कि नहीं। विद इन द ट्राउज़र इटसेल्फ देखने की ज़रूरत नहीं है, हाथ लगाने से ही पता लग जाता है। जो यूज़र हैं वो अपने आप हाथ से फील करते हैं कि हाँ ये लॉक हो गया, तो देन दे स्टार्ट वॉकिंग। ऐसा नहीं है कि उनको ट्राउज़र हटा के देखना पड़ेगा कि लॉक लगा है कि नहीं लगा, ओनली द फीलिंग है, हाथ से फील कर लेते हैं कि लॉक हो गया और वो उसके साथ चलने लगते हैं। और खोलने के लिए तो इजी है, देन अनलॉक कर लेते हैं और मुड़ जाता है तो मीन्स अनलॉक हो गया और दे कैन सिट विद दैट। सो एक ये ड्रॉप लॉक जो जॉइंट है इसके अंदर भी कई तरह के मीन्स मटेरियल बीइंग यूज, जैसा अभी लिम्को की बात कर रहे थे, जो कंपनी एक गवर्नमेंट की हमारी कंपनी है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में ये जॉइंट सप्लाई कर रहे हैं। दे आर गिविंग ऑन देयर रीजनेबल रेट, अपने जो उनका मार्जिनल जो होता है उसके ऊपर। एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ये यूज़ कर रहे हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं अब काफ़ी जगह पे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से करीब करीब सब जगह पे यही जॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं।
और काफ़ी सालों से अब इस्तेमाल हो रहे हैं। एलिम्को ने अपना जो प्रोडक्शन था समवेयर 74 से शुरू किया हुआ है, तो इतने साल हो गए उनको देते हुए, और ये बहुत अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं। जॉइंट्स हमारे पास जो हैं ये ड्रॉप लॉक जॉइंट है, और इस तरह के अभी स्टील में आने शुरू हो गए हैं जो कम्प्लीटली स्टील है, और इसमें भी अलग अलग साइजेस आते हैं। बच्चों के लिए अलग साइज़ है, जो मिडल जो अप टू 10-11 साल 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए अलग है, और फिर 12 साल या 13 साल से बड़े जो एडल्ट्स में आ जाते हैं वो एक साइज़ अलग है, क्योंकि इसकी क्षमता के ऊपर है। जो हैवी वेट पेशेंट है, अगर कई दफ़ा उससे भी भारी पेशेंट आता है तो जो एल्यूमिनियम बार होती है उसकी जगह पे स्टील की बार इस्तेमाल करना ज़्यादा एडविजिबल होता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट ऑफ द यूज़र का वेट ज़्यादा है तो उसके लिए, और कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उसके विद द हेल्प ऑफ द बैंड, इधर द थाई बैंड और द काफ बैंड हैज़ टू बी गिवन, जिसकी वजह से उसमें पूरे ऑर्थोसिस के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दी जाती है, सो दैट कि टू मेक इट श्योर कि पेशेंट गिरना नहीं चाहिए। ये हमारी एक फर्स्ट वो होती है कि पेशेंट को कहीं भी गिर के चोट नहीं लगनी चाहिए। जो ऑर्थोसिस यूज़र हैं उनको कहीं भी बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थोसिस कहीं सफ़र नहीं करना पड़े। तो हमारी तरफ से एक बड़ी चुनौती रहती है, बड़ा ध्यान देने की बात रहती है कि हम इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनके लिए करके। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए स्विस लॉक है। स्विस लॉक एक्चुअली इसमें दिस इज अगेन वन मोर डिज़ाइन नी लॉक्स में। स्विस लॉक का मेन एडवांटेज हम लोग एक्चुअली जैसे अपने पहले आपने देख लिया, ऑफसेट नी जॉइंट देखा है, ड्रॉप लॉक नी जॉइंट देखा है। ड्रॉप लॉक नी जॉइंट में भी लॉक करके पेशेंट चलते हैं, ऑफसेट नी जॉइंट में विदाउट लॉक पेशेंट चलते हैं। इसमें जो है लॉकिंग भी है, अनलॉकिंग भी है, दोनों सिस्टम है। पेशेंट को विदाउट यूजिंग देयर अपर एक्सट्रीमिटी हैंड्स ये अनलॉक होने जैसा डिज़ाइन एक बनाया गया है। सो इसमें एक एडवांटेज यही है कि वाइल सिटिंग द पेशेंट, इस लॉक में एक रिंग बना हुआ है पोस्टीरियरली, उस रिंग को जिस बेस पे पेशेंट बैठना चाहेगा उस बेस को, उस रिंग को टच करते हैं, सो इट गेट्स ऑटोमेटिकली अनलॉक्ड। तो पेशेंट ऑटोमेटिकली फिर उसमें फ्लेक्स करके बैठ जाएंगे। फिर स्टैंड करके पेशेंट अगर नी को एक्सटेंशन में फोर्स करते हैं, इट लॉक्स ऑटोमेटिकली। तो उसमें वो स्प्रिंग लोडेड या इलास्टिक उसमें लगा हुआ है जो इसको स्विस लॉक जो है इसको ऑटोमेटिक लॉक करना और अनलॉक करना इसमें एडवांटेज। एक तो जिसका हाथ दोनों, किसी का हाथ कमज़ोर हो सकता है, किसी का अगर हाथ कटा हो भी हो सकता है, अगर लोअर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड हो, हाथ फंक्शनल ना हो, उसमें ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरे पॉइंट आपने लास्ट टाइम आपने पूछा कॉस्मेसिस पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक पेशेंट अपना डिसेबिलिटी शो नहीं करना चाहते। अगर किसी ने कैलिपर्स पहना है, उसको अनलॉक करना है तो उसको झुकना पड़ता है, झुक के उसको अनलॉक करना पड़ता है, अनलॉक करके फिर उसको फिर बैठना होता है। तो इसमें ये क्या है, पेशेंट अपना शो ना करके चुपचाप जो चेयर में बैठना चाहते हैं उस चेयर को जस्ट टच करेंगे सीट के ऊपर, तो इट गेट्स ऑटोमेटिकली अनलॉक्ड। सो दैट इज़ द एडवांटेज एक्चुअली द पेशेंट गेट्स। तो इसमें अपना डिसेबिलिटी बिना शो करके आराम से अपना बैठ जाएगा। स्टैंड होने के बाद अपना थाई को जस्ट लिटिल पुश करेगा, बैकवर्ड पुश करते हैं वो लॉक हो जाएगा और नी स्टेबल हो जाएगा। चलते समय तो नी ऑलवेज इन लॉक ओनली, बट वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग लॉकिंग अनलॉकिंग सिस्टम जो है इसमें विदाउट यूजिंग हैंड्स इट कैन बी ऑपरेटेड। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्विस लॉक। ये जो यूनिट हैं ये अभी हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं बन रहे हैं, ये सब बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे हैं और काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका काफ़ी बेनिफिट ले रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। But these are the basically the improved versions Improved of the versions, yes. units. इसके फर्दर भी इम्प्रूव्ड वर्जन्स आ गए हैं, बट कंपैरेटिवली दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इसमें एक नया डिज़ाइन भी आया है विथ ए क्लैम्प। द क्लैम्प इज अटैच्ड एट द थाई लेवल, सो द पेशेंट पुल्स द क्लैम्प, द नी gets automatically unlocked. That is cable control, एक Cable केबल लगा control दी system. and उसमें instead pull of pushing the मतलब उसमें वो रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। posterior ring push करने के बजाय आप कंट्रोल केबल से उसको ऊपर से एक मतलब नॉब उसमें है, भी- उसको आप जस्ट पुल कर दीजिएगा, लॉक खुल जाएगा। पर्पस यही है कि वी नीड टू अनलॉक द नी जॉइंट बिफोर सिटिंग and we need to lock it when we want to walk, when a person wants to walk, because we need a stability during the walking. So patient should not buckle at the time of walking. weight bearing जब आता है पेशेंट का, उसके ऊपर पूरी ऑर्थोसिस के ऊपर वेट होता है। ये हमारा एक वॉकिंग जो सर्कल है, आप देखिए हम लोग भी चलते हैं, आप चलते हैं, सब चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? एक स्टेप जैसे लेफ्ट वाला स्टेप हमने ज़मीन पे रखा और राइट आगे लेके जा रहे हैं। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब हम पीछे से उठा के आगे जा रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी वेट एक पैर के ऊपर है, जी
कंप्लीट हमारा बॉडी वेट चाहे 60 किलो 70 किलो 80 किलो जितना भी जिसका वेट है पूरा का पूरा वेट एक पैर के ऊपर है। इसी तरह से जब राइट फुट रखते हैं लेफ्ट को उठा के आगे जाते हैं तो पूरा वेट हमारा ट्रांसफर हो जाता है दूसरी साइड पे और ये फुट हमारा आगे जाता है। सो इट मीन्स द कैलिपर शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर नॉट हाफ ऑफ द बॉडी वेट बट इट शुड बी एबल टू बियर द फुल वेट ऑफ द बॉडी। सो बॉडी का पूरा वजन उस वक्त आता है जब कैलिपर वाली साइड के ऊपर पेशेंट का पर्सन का यूजर का उसके ऊपर वेट आता है। तो दूसरे पैर को जब क्लियर करना होता है ग्राउंड को इतना वेट पूरा लेने के लिए उसको एक सक्षम बनाना पड़ता है। तो जो जॉइंट्स हैं जो ऑर्थोसिस है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ बॉडी वेट के हिसाब से बनाया जाता है कि बॉडी वेट ज़्यादा है तो इट शुड हैव मोर स्ट्रेंथ। सो ये वॉकिंग साइकिल हर साइकिल के अंदर 10 कदम लेंगे तो 10 बार ही वजन आएगा, 100 कदम लेंगे तो 100 बार ही उसके ऊपर हमारा एक स्टेप के ऊपर पूरा बॉडी वेट आएगा। सो दिन में हम पता नहीं कितने हजारों कदम चल जाते हैं। So depending on the requirements and the ability of the patient, there are different type of knee units that are orthotics and prosthetic will provide to the patient. सर जैसे कि आज का ये हमारा डिस्कशन था, इट वाज रिगार्डिंग द लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस। तो अभी तक जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस की with some purpose, important purposes and at different levels. Yes. तो ये हमने डिस्कशन की, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या की पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि वो उन सब बातों का ध्यान रखें और हमारे इस डिस्कशन से उनको बेनिफिट हो। So whenever they required an orthosis, a proper orthosis, they should go to a proper fitting centers. So government organizations में भी और आज के डेट में सारे जगह अवेलेबल हैं. When there are private organizations also there are multinational companies also there. Means with latest technology, all these orthoses are available. So they can contact to any means trained centers means concerned that they should go. They should not go to a layman actually. जी. Say nowadays laymen also they are also making to get profit of it, and they fit the orthosis but they don't know the exact technology of the orthosis. Sometimes it may give disadvantage instead of advantage. So the patient should go to a proper places, a trained means trusted places they should go, and they should get the orthosis made from a educated prosthetist and orthotist person only. So that will be means the professional who is professionally trained with the degree or diploma in this field knows about which is the weight bearing area, which is the weight relieving area, where we need not to give a pressure to the person, and where we want to relieve the particular part, because if we don't relieve that particular part then it may further damage the body part. So that's why the trained person has to be considered only for the orthosis. If the person is a regular user, they themselves understand that what is the right or what is the wrong, because they are the user. Whenever we also fit to them, we get the feedback from the patient itself, because they give us the feedback whether they are comfortable, or if they are not comfortable, why they are not comfortable. We then after knowing that why he is not comfortable, we decide what may be the cause of this discomfort. This patient can't tell us, the user can't tell us why he is not comfortable. Only the thing he can say, I am not comfortable. But why he is not comfortable, that will be the only professional will come to know what may be the reason that he is not comfortable. Where is wrong with the orthosis, where is wrong with the fitment, where is wrong with the fabrication, whether it is wrong with the some size, or it's a problem with the designing. So all the things are known by the professional. The person who is not trained may not be able to detect that what is the problem, because we need to work on the diagnosis. Usko first to know that what is the problem. So if I can understand, if the person can understand perfectly what is the problem with the person, why this discomfort to the patient, then only we can provide him a cure for that. Without knowing, if I do anything may be wrong, it will not work. Yeah, that is not going to work. So advisable is that a professional should be considered. Yes, patient should come forward with their problem, with their requirement, freely, openly they should come. They should ask us anything. If we will be able to give the person with that facility, we will tell them. If it is not, then we will give the reason why not. So we will explain everything, why it is not possible, why it can be done itself. So we can satisfy the person who is using the orthosis. So every time whenever they want to get a good orthosis, to get a maximum use of their remaining part of the weak part, so they should consult the orthotist. That is the advisable. जी,
सर जैसे कि आज का जो टॉपिक था इट वाज लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस और हमारे एक्सपर्ट ने उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दी जो कि आप लोगों ने व्यूअर्स ने सुनी और हम चाहेंगे कि आप उनको फॉलो करें और उन बातों का ध्यान रखें जिसमें कि हमने देखा कि ऑर्थोसिस की ज़रूरत किन कंडीशंस में होती है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेरिब्रल पॉल्सी, पोलियो और कुछ अदर कंडीशंस विच कैन बी एक्वायर्ड और कंजेनाइटली प्रेजेंट इन द पेशेंट्स, और उसका एक पर्पस होता है दैट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। और साथ के साथ फैमिली का रोल, पेरेंट्स का रोल, सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और इसमें अगर हम देखें कि अवेयरनेस होना उसके साथ और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होगी तो पेशेंट को और नॉर्मल इंडिविजुअल को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और किसी चीज़ को सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहेंगे कि आप इस बात का ध्यान रखें। दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन. This is time for the closing of our session. Thank you so much.